Uh, Yesterday we had first lecture delivered by Tukram Jadhav sir, Director of Unique Academy, and you talked about the nature of the examination, right? What kind of strategy, approach, roadmap, you call it, you are supposed to adopt, right? So it was a kind of orientation lecture in terms of how to approach this examination, right? From today onwards, we will be discussing different subjects that we learn as part of general studies, right? You would have introductory lectures, right? So today is introductory lecture of what is called Indian history. There is a component called history, and within that there is a component called Indian history, and there's another component that is world history, modern world history, that would be dealt with by a separate faculty. So likewise, there will be introductory lectures from today onwards. So polity, economy, geography, and likewise, right? So this is specifically about Indian history, which is there in GS paper 1, right? What all things I'll be talking about as part of this introductory lecture, uske mein baat karta hu. But before that, history as a topic has got different components. The first component, if you go by syllabus, and I'm talking about main syllabus here because the syllabus of preliminary examination as far as history is concerned, that is one liner. One liner मतलब in one line क्या बोला गया वहाँ पे? History of India and Indian national movement. History of India and Indian national. That is one line syllabus, right? Syllabus of the mains examination gives you a little bit more idea as to what all things are there in what is called Indian history. The first component within what is called Indian history is Indian culture, right? And they have defined it. Syllabus में लिखा हुआ है art, architecture and literature, right? Of ancient to modern times. So it covers all three components of history: ancient, medieval and modern. तो Indian culture आपको पढ़ना है तीनों का, ancient, medieval and modern, right? That is first component. Second component, it expects you to study modern history a little bit more in detail, right? So first line of syllabus के बाद जो second line है, that directly deals with modern history, and it makes it very clear that you are supposed to read it from middle of 18th century. So UPSC has clearly told you that modern history for you begins with 1750 onwards, right? But there is no significant event in 1750. So for all practical purposes, it is 1757, which is Battle of Plassey, right? From where the entire orientation of Indian history changed, and that is why वो एक turning point है वहां से फिर modern history, right? Again, they talk about modern history in this manner, middle of 18th century up to the present times, right? ये जो present times है उसका क्या करेंगे? We will talk about that as well. Don't worry. Okay, but once they define it in this manner, middle of 18th century to the present times, is there any need to go for some more lines of syllabus as far as modern history is concerned? There is not. But UPSC mentions again freedom struggle separately. We know India's freedom struggle is very much part of what is called modern history. But despite that, they have mentioned it separately, right? So it is third component. And the fourth component is post-independence history of India, right? So these are four components about which I will be talking about as an introduction to this subject, right? And I repeat, you would have separate lectures for modern world history. Okay. As far as UPSC syllabus is concerned, there is no ancient and medieval world history. There is only modern world history. और वहां पे भी UPSC ने बहुत clearly बोल दिया, UPSC clearly states that you're supposed to read, understand modern world history from 18th century onwards, right? Okay. So let us look at the agenda for today's lecture. Before you begin with any subject, I am saying any subject, you should first understand what that subject is all about. वो subject है क्या exactly, right? When we say history, what is history? When we say polity, what is polity? When we say economics, what is economics? Okay. जो बाकी subjects हैं,
just to take an example, इसके बारे में तो बात करूंगा मैं, that is our core topic, right? है ना? अगर मैं ये बोल दूं randomly economics, what do you understand by economics, right? इसके ऊपर somebody may come up with a lengthy answer, right? But the simplest and basic understanding of the term economics is it is a science of scarcity. Economics क्या है? Science of scarcity. इसका मतलब ये हुआ, if everything would have been abundant in the world, nobody would have thought about economics. Because our needs are infinite and resources are finite, we have to talk about economics. It is basically science of scarcity, how to manage things at our disposal so that we can meet the needs of number of people, right? एक बहुत simple understanding. You can go on talking about different other aspects of economics, but एक basic understanding जो होता है, right? उसी तरह से first of all we have to understand what is history, right? और उसी का एक हिस्सा, उसी क्वेश्चन का एक हिस्सा ये है, what do we need to study in history? So what is history is first question. Second is what do we need to study in history? ठीक है, ये दो सवाल हो गए और तीसरा सवाल ये है जो हमारा टॉपिक है, what is Indian history? What is history in general? What are we supposed to study in history? ये हो गया. उसके बाद you have to focus on what is Indian history. And ये तीन सवाल आंसर करने के बाद you are in a position to understand UPSC syllabus for Indian history, right? So I will talk about that as well. एक बार syllabus पता चल गया, you can go to the what is called PYQs, previous year questions, right? So I would take a few sample questions. It is impossible to discuss all the questions. That would take a lot of time. But few sample questions as to understand what type of questions are being asked, what is their nature, and based on that, what are the expectations of the commission from us? Commission हमसे क्या expect कर रहा है, ये हम पढ़ेंगे, right? PYQ जो होते हैं ना, previous year questions, इसको आंसर नहीं करना होता है, हाँ? So many students, what they do when we advise them to go for previous year question paper analysis, right? They try to answer it, ठीक है? और अगर आंसर नहीं कर पाते तो फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं. ये तो अजीब हो गया, right? This is strange. अगर आपने पढ़ाई नहीं है अभी तक तो आंसर क्या कर रहे हो? You are not supposed to answer them immediately. In this, बस ये देखना है कि सिलेबस के कौन से हिस्से के ऊपर सवाल आ रहा है. On which part you are attempting question, number 1. Number 2, किस टाइप का सवाल है और उसके लिए क्या करना पड़ेगा. PYQ analysis along with syllabus, right, should serve as a guiding star for you to decide how to study. समझ में आ रहा है? ये दो चीजें इसलिए ठीक से पढ़नी है ताकि पढ़ाई कैसे करें, उसका अप्रोच क्या होना चाहिए, ये पता चले, right? So we will be doing that for this particular subject, that is Indian history, right? Okay. After that, ये जब discuss करेंगे ना, while discussing all these things, ये point वैसे cover हो जाएगा. Approach to history, but फिर भी I have kept one slide summarizing how should we approach this subject for UPSC examination. So how to study Indian history, and at the end of it, something that you eagerly wait, sources for the study of history. But ये समझ लो पहले ये पढ़ना जरूरी है, उसके बाद we can go to sources, right? Let us begin with the first question. What is history? I would like to know that from you guys. किसने बोला हाथ ऊपर करो? Okay. Anything else? हाँ. Okay. Okay. Anything else? Over time means past ना फिर से. Anything else? Okay. और कुछ? ठीक है. Everybody would somewhere talk about what? Past, right? हाँ, ये इसने पढ़ा है, 3 years student. I know that. That is quite expected, you know. So just to, and again, I must clarify that, you know, there will be some students coming from 3 years batch, जिनका basic sum लेते हैं first and second year में, right? But I must tell you guys particularly, जो 3 years से यहाँ पे आए हैं,
इसको ऐसे लेना पॉजिटिवली, ठीक है। आपका कुछ एक पार्ट हो चुका है, यू मे एंजॉय सम एडवांटेज, बट दैट एडवांटेज इज ऑलवेज मोमेंटरी। आप फॉर्मूला 1 रेसिंग जानते हो क्या? थोड़ा सा डिविएशन कर रहा हूं। तो यू नो फॉर्मूला 1 रेसिंग, यस और नो? वो कार का होता है, पता है ना इतना तो। कार भगाना है जोर से, राइट? दैट इज फॉर्मूला 1 रेसिंग, ओके। तो फॉर्मूला 1 रेसिंग में कार का जो अलग अलग लैप्स होते हैं ना, एक लैप पूरा हो, दूसरा लैप, कार को फिर रिपेयर भी करना पड़ता है। डू यू नो दिस? तो फॉर दैट पर्पस दे टेक व्हाट इज कॉल्ड पिट स्टॉप। पता है आपको ये पिट स्टॉप? तो पिट स्टॉप कितने समय का होता है सर्विसिंग ऑफ द कार? आपने सही में देखा है कि वो रेसिंग पिट स्टॉप कितने समय का होता है? हाँ, फ्यू सेकेंड्स, 10, 8, 9, 12, and in those seconds they change the tires, they do everything what is required, है ना, और भागती है कार। अगर वो पिट स्टॉप 20 सेकंड का हुआ ना, मुश्किल है, राइट? एडवांटेज इज लॉस्ट। मैं किस एडवांटेज की बात कर रहा हूं? फॉर्मूला 1 रेसिंग में सैटरडे को एवरी ड्राइवर इज गिवन 3 चांसेस टू कंप्लीट अ लैप इन फास्टेस्ट पॉसिबल वे, और जिसका फास्टेस्ट रिकॉर्ड होता है उसको पोल पोजीशन मिलता है। उसके ट्रैक होते हैं ना ऐसे, देयर आर ट्रैक्स, तो पोल पोजीशन, फिर दूसरे का पोजीशन, फिर तीसरे का, इस तरह से। तो जो पोल पोजीशन है नेचुरल एडवांटेज होता है कि थोड़ा सा आगे, बट एडवांटेज इज एडवांटेज, यू कैन लूज इट एनी टाइम। समझेगा? क्लियर? तो आई एम टॉकिंग अबाउट दोज हु आर कमिंग फ्रॉम 3 इयर्स बैच, यू नो। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। आई एम जस्ट सेइंग दैट यू शुड बी वेरी केयरफुल, राइट? You are going to get a lot of extra things here. Do not consider this as repetition of what you have learned in first year history. समझ में आ रहा है? ठीक है, so pay attention here and rest of the people, आप ये मत समझना कि इनको कुछ हमने पढ़ाया है तो आपको नहीं पढ़ाएंगे। Getting this? So it is going to be comprehensive study of history. Don't worry at all about all those things. So yes, he is right in the sense, जब आप हिस्ट्री को पास्ट बोलते हो ना, इन वन वे और द अदर, ही टॉक्ड अबाउट इवेंट, समबडी हैज टॉक्ड अबाउट लर्निंग, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट? समवेयर वी आर रेफरिंग टू पास्ट, इजंट इट? हिस्ट्री मतलब पास्ट, ऐसा देख रहे हैं ना हम, बट दैट इज टू सिंपलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज इफ यू से पास्ट विदाउट एनी काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन टू पास्ट, राइट, तो एक नेचुरल सवाल बनता है, पास्ट मतलब कहां तक पास्ट? ठीक है, यहां पे आज खड़े हो आप, ये प्रेजेंट है आपका, सो कितना पीछे जाना है? इसका कोई लिमिट है क्या, राइट? आर वी गोइंग टू गो बैक टू द बिग बैंग? तो कहां रुकना है? ये एक सवाल, डोंट आंसर, ठीक है। और दूसरी बात, देयर आर अदर टर्म्स एज वेल, लाइक प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री, एंड देयर इज नथिंग लाइक व्हाट इज कॉल्ड प्री पास्ट, राइट? इसका मतलब है व्हेन वी सिंपली कनेक्ट द टर्म हिस्ट्री टू पास्ट, देयर इज सम काइंड ऑफ लिमिटेशन टू दैट अंडरस्टैंडिंग। वो अंडरस्टैंडिंग आपका फुल्ली करेक्ट नहीं है, देयर आर सम प्रॉब्लम्स इन दैट, राइट? तो इसीलिए वो टर्म इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्डेड पास्ट। सो आई वुड गो टू द नेक्स्ट स्लाइड जस्ट टू गेट द आंसर्स टू द क्वेश्चन। मतलब प्री हिस्ट्री क्या है, प्रोटो हिस्ट्री क्या है, राइट? नाउ यहां पे हम उसकी बात करेंगे कि सही में हिस्ट्री पास्ट है क्या? अगर वो पास्ट है तो प्री पास्ट होता है क्या कुछ, और प्रोटो पास्ट, राइट? बट बिफोर दैट देयर आर सम सिलेक्ट डेफिनेशंस, ठीक है? some scholars try to define history, ठीक है? यहाँ पे 3 एग्जांपल लिए मैंने, and the moment you look at those definitions, those definitions look very exciting, right? Prima facie, the moment you look at them, but there are limitations of those definitions. एक एक देखते हैं। First one, Professor Reiner says history is memories of societies. History क्या है? Memories of societies. There are number of societies, right, within a particular society, और उनकी अलग अलग मेमोरीज है, राइट, है ना? सो वेस्टर्न महाराष्ट्र का मेमोरी अलग है, मराठवाड़ा का अलग है, विदर्भ का अलग है, दिस, है ना? सो किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? इट बिकम्स क्वाइट जनरल एंड वेग, एग्जैक्ट मीनिंग हाथ में नहीं आता, राइट? ये देखो, थॉमस कार्लाइल, वर्ल्ड हिस्ट्री इज बायोग्राफी ऑफ ग्रेट मैन, व्हाट अबाउट ऑर्डिनरी मैन, एंड पर्टिकुलरली व्हाट अबाउट विमेन? सो these are old definitions, they look quite interesting, fascinating, but I must tell you,
हमारा भी एक मिसकंसेप्शन होता है, हिस्ट्री मतलब बड़े बड़े लोग, राजा लोग, उनकी कहानियां, उनके वॉर्स। ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। एंड ये जो अंडरस्टैंडिंग है हिस्ट्री का, इसीलिए आप बहुत सारे मिसकंसेप्शंस क्रिएट करते हो। मैं आज आपको यूपीएससी के सवाल भी दिखाऊंगा, आई वुड शो यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, and I would make it a point that you understand that history needs to be understood, not to be narrated, to be heard and to be remembered. समझते कभी क्या समझते थे? आपको समझ में आ रहा है क्या बोलने की कोशिश कर? कोई आपको हिस्ट्री का स्टोरी बताएगा, आप उसको सुनोगे, फिर उसका रट्टा मारोगे और फिर रिप्रोड्यूस करोगे, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। और ये मैं इतना जोर देकर क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज इफ यू लुक एट द क्वेश्चंस व्हिच अपीयर्ड इन द मेंस एग्जामिनेशन, वहां पे अलग एक्सपेक्टेशन है। You are supposed to examine something. You are supposed to assess something. You are supposed to elaborate something. You are supposed to understand connection between two things in terms of evolution. Somebody talked about change, right? So over a period of time, क्या change हुआ? So all these things are the way in which UPSC is asking questions. So history needs to be analyzed, understood, assessed, evaluated. समझ में आ रहा है आपको? And that is why you need to adopt a different approach than the conventional approach. ये conventional approach है। अशोक के बारे में बताओ, है ना, कलिंग वॉर में क्या हुआ था, कुरुवकी कौन थी, ये सब ठीक है, राइट? दैट इज वन पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज ए लॉट मोर टू टॉक अबाउट मौर्य पीरियड। समझ में आ रहा है? सो इंक्रीजिंगली द फोकस इज ऑन सोसाइटी, इकोनॉमी, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ पीपल हैड on ground, right? What was the position of women in that particular society, right? What kind of cultural activities they undertook, right? What were the socio-economic conditions? Trade and commerce कैसा था? Major occupations कौन सा था लोगों का, right? So all these things are becoming increasingly important, and you are getting questions on those aspects. समझ में आ रहा है आपको? एक एग्जांपल के तौर पे जो कि हम वैसे भी लेने वाले हैं, संगम साहित्य के ऊपर सवाल आया था मेंस में, एंड उसमें ये पूछा था, राइट, कि संगम साहित्य में rather than the connected political history, you get more information about socio-economic conditions of Sangam age. Explain. तो सवाल तो कल्चर पे है, लिटरेचर के ऊपर, लेकिन क्या पूछा गया है? सोशियो-इकोनॉमिक कंडीशंस कैसे पता चलता है बताओ? That means you are supposed to describe socio-economic conditions as you got it from Sangam literature, right? So it is not just about literature, उससे जुड़ा हुआ जो socio-economic conditions है, वही पता होना चाहिए. And that is why you have to look at it differently. तो ये काफी नहीं है, दिस इज नॉट इनफ, राइट? देन E.H. Carr says history is a dialogue between present and the past. वेरी इंटरेस्टिंग है ना, ये और फैसिनेटिंग लगता है ना, डायलॉग चल रहा है हमारा हमारे अतीत के साथ, राइट? आवर डायलॉग विद आवर पास्ट, क्वाइट इंटरेस्टिंग, बट ही इज प्रीटी क्लोज टू व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री, राइट? एंड ये जो है ना हमारे, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में कौन राजा था? कोई राजा था क्या, या फिर कोई दूसरा सिस्टम था कि पॉलिटिकल सिस्टम? अलग अलग हिस्टोरियंस हैव डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशंस. कुछ हिस्टोरियंस से दैट द प्रिस्ट वाज द किंग, अदर्स से नो, मर्चेंट वाज द किंग, important merchant, right? So it is open to interpretation to a large extent, right? So yes, indeed it is dialogue between present and the past, but that dialogue is not our dialogue, right? We are ordinary people. हम कौन है? You and me, we are ordinary people. That dialogue is a dialogue of the historians through which they engage with the past. जो serious historians है उनका dialogue है, right? उसी से वो knowledge आता है. तो ये it is close, but still we are yet to get exact meaning of what is called history. You would get that here. दूसरे पेज पे आपको यहाँ पे वो उसका मतलब समझेगा. So now, is it past? So plain and simple answer is not necessarily. ठीक है? या फिर yes it is, but with some qualification, right? वो qualification क्या है? It has to be recorded past. वो क्या होना चाहिए? Recorded past. अब दिक्कत ये है, if you say recorded past, आज तो सब कुछ recorded है, नहीं? बिग बैंग भी recorded है ना? तो isn't it? ज्योग्राफी की बुक में आप बिग बैंग थ्योरी के बारे में नहीं पढ़ते क्या? तो रिकॉर्डेड है. इंटरप्रिटेशन की बात नहीं, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन तो अलग अलग होगा. मुझे बताओ पहले, आज तो सब कुछ रिकॉर्डेड है, तो सब कुछ आना चाहिए उसमें. हाँ, अरे हाँ, ह्यूमन पास्ट पूरा रिकॉर्डेड है, वही बता रहा हूं मैं. अच्छा एक बात बताओ, टेल मी वन थिंग, इन स्टैंडर्ड 3 इयत्ता तीसरी
इन स्टैंडर्ड 3। आपने स्टोन एज के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो लिख के है, पूरा रिकॉर्डेड है। नाउ यू डिफाइन अगेन व्हाट इज हिस्ट्री, एंड एनीबॉडी फॉर दैट मैटर। हाँ हाँ हाँ, नहीं रे, पढ़ पाता है ना तो स्टोन एज के बारे में इंफॉर्मेशन है कि नहीं बता। हाँ हाँ अच्छा ठीक है, मैं समझ गया तू जो बोलने की कोशिश कर रहा है। आई टेल यू वन थिंग, मैं क्यों पूछ रहा था पता है क्या? It is my very honest effort, right, to give a message to 3 year students that there is a lot to learn. There is a lot more to learn, right? है ना? ये जो confusion है यही clear करने हैं हमको। हाँ, I'll tell you one thing. The beginning of education is with a lie. पता है आपको ये? मैं prove कर देता हूँ खड़े खड़े, है ना? Our education began with a simple thing which was being told to us when we were very small kid, and we continue to do that, right? है ना? And that lie was sun rises in the east and sets in the west. When you grow up, you know sun neither rises nor sets. It is earth that revolves around sun and rotates around itself. ठीक है, लेकिन एक छोटे बच्चों को बोलोगे ना कि सन के अराउंड अर्थ घूमती है और खुद के अराउंड भी घूमती है, उसका दिमाग घूमने लगेगा कि बोल क्या रहे, व्हाट इज दिस। तो आपको समझना पड़ेगा, समटाइम्स यू हैव टू ओवर सिंप्लीफाई थिंग्स इन ऑर्डर फॉर समबडी टू ग्रास्प इट। लाइकवाइज एनसीईआरटी में बोल दिया है चाणक्य एंड कौटिल्य आर वन एंड द सेम। ओह रियली, आर दे? वेर दे रादर? उसके ऊपर बड़ा डिबेट है हिस्टोरियंस के बीच में। सो आई वुड बी टॉकिंग अबाउट दैट पार्ट हियर। एनसीईआरटी बच्चों का होता है, वो ब्रह्म वाक्य नहीं है, वो सिंप्लीफाई किया जाता है, उसमें कुछ डिटेल्स छूट जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या आपको? कुछ चीजें हैं जो कि वो सच है, जो कि वहां पे लिखा गया, कुछ चीजें सिंप्लीफाई की जाती है। बट आगे जब आप पहुंच जाते हो, जब आप बीए करोगे, एमए करोगे हिस्ट्री में, तो वहां पे डिबेट खड़ा होता है कि चाणक्य, कौटिल्य एंड विष्णुगुप्त एक ही थे कि कुछ अलग अलग था उसमें, कौन से थ्योरीज है, किसका क्या ओपिनियन है, और जो कंक्लूजन है वो क्या बोलता है। गेटिंग दिस? कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, रिकॉर्डेड पास्ट, आपने ये बोलना चाहिए था टू शट माय माउथ। रिकॉर्ड्स उस समय के होने चाहिए, आज के नहीं। Basic answer to what I was narrating was, records should be coming from the time period in question. तो Stone Age से record है क्या? And you committed another mistake while justifying your position, saying that we got something which we are not able to read. We got nothing from Stone Age. There was no script at all. Stone Age से बस पत्थर मिला है रे, और कुछ नहीं मिला, right? So script was not developed. Script मतलब लिपि, है ना? वो डेवलप नहीं हुई थी। वो जो आप डिस्क्राइब कर रहे थे वो प्रोटो हिस्ट्री है, एंड दैट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन, जहां से स्क्रिप्ट मिला है, बट वी आर नॉट एबल टू डिसाइफर इट। सो लेट मी डिफाइन द थिंग्स नाउ, राइट? हिस्ट्री इज नॉट जस्ट पास्ट, इट इज एक्चुअली द रिकॉर्डेड पास्ट। आपको ये ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, राइट? एंड दोज रिकॉर्ड्स मस्ट बी फ्रॉम द टाइम पीरियड इन क्वेश्चन। मतलब अगर आपको डिसाइड करना है कि I hope things are fine. Let's check it out, because there are people who are online as well. Are you already online? Happy to check. Okay. So we will continue the discussion. We'll continue the discussion. Hello. I love your attention. So recorded fast. जो टाइम पीरियड है ना इन क्वेश्चन, वहां से क्या रिकॉर्ड्स मिले, ये देखना है आज के रिकॉर्ड्स में, राइट? तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिकॉर्ड्स मिले, इसी के बोल रहा था। वी हैव गॉट द रिकॉर्ड्स, लेकिन वी आर नॉट एबल टू डिसाइफर देयर स्क्रिप्ट। उनका स्क्रिप्ट का कोई मतलब नहीं निकल रहा, वी आर नॉट एबल टू डिवाइड इट अप मीनिंग ऑफ इट, राइट? तो रिकॉर्ड्स जहां से मिलना शुरू होता है, जिसका मतलब हम समझते हैं, राइट? दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल पीरियड। क्या बोलते हैं उसको?
historical period, and a time period from where you are getting records, but you are not understanding them, you are not making sense of it, you are not able to decode it, right? Decipher it. उसको बोलेंगे प्रोटो हिस्ट्री. रिकॉर्ड्स मिल रहे मतलब हिस्ट्री जैसा है, लेकिन समझ नहीं जाना उसको, है ना. प्रोटो शब्द का अर्थ पता है ना, लाइक. प्रोटो मींस लाइक, है ना. प्रोटोटाइप होता है किसी बिल्डिंग का छोटा प्रोटोटाइप, है ना. So proto history, life history, right? And the time period from which we don't get any kind of record, that falls into what is called prehistory. Clear? Huh? So, just a moment, I will just start my video again. So, historical period, proto-history and prehistory. Sequentially speaking, there is prehistory first, right? Humans at some point of time develop writing skills, right? अगर वो रिकॉर्ड मिला है हम समझ नहीं पा रहे हैं प्रोटो हिस्ट्री, एंड जहां से आपको रिकॉर्ड्स मिलते हैं यू आर एबल टू रीड देम, दैट इज द हिस्टोरिकल टाइम पीरियड, राइट? सो ये तीन इंपॉर्टेंट terms that you are supposed to understand. Okay. So what are those three terms? Historical period, proto-history, and prehistory, right? And we need to understand this. All three are part of history, ना? ये तो है कि historical period. History देख रहे हैं आपको. History subject covers all three things. कौन सी तीन चीजें? Prehistory, proto-history, and historical time period. Right? Okay. Are we clear on the relation between past and history now? I am not yet clear. हो सकता है कि आप clear हो, ठीक है? I am not yet clear, right? I am still yet to get one important aspect of history. So first of all, you look at the answer. ये हमारे सवाल थे, these were questions. What is past? We said it is recorded past, not just past, right? History क्या होता है? Recorded past होता है. It is not merely past, right? So यहाँ पे हमने क्या लिखा था? Recorded, है ना? Past में वो records could be either written or oral. ठीक है? तो ये क्या है ना? कई बार people had the language, but they probably did not have script. So they composed something orally, right? They composed something orally, and that was transmitted from one generation to the next generation. So एक oral tradition बनता है. क्या बनता है? Oral tradition. तो वो information भी हम तक पहुंचती है. So that is also record. Best example is Vedic literature, right? वेद रचे गए थे, लिखे नहीं गए थे. You understand this? वैदिक काल में वेद रचे गए थे, orally composed, जैसे कि महाराष्ट्र में बहिरावती चौधरी. शिवाजी ने ट्रेड पता है आपको? But she composed poems. She did not write the poems, right? और बाकी लोगों ने सुन करके उनको लिखा. Likewise, वेद रचे गए थे, वो जो वेदों के अलग अलग हिम्स हैं, रुचा बोलते हैं उसको, रुचाएं रची गई थी, और वो जो रुचाएं हैं एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन बाय हार्ट करके ट्रांसमिट हुआ. At some point of time in the ancient history, those were written down. Getting this? So we are getting the records from the same time period, that is Vedic age, in the oral format. बाद में written format में हम तक पहुंच रहा है, तो वो भी हिस्ट्री का पार्ट हो जाए. Getting this? Historical period, right? So either written or oral records. Then हमने देखा कि what is prehistory, what is proto-history. आंसर से आपके सामने. History is a recorded past, right? Records could be either written or oral. The period going beyond the recorded past, ठीक है? From which records are not available. So क्या बोलेगा? Prehistory. कभी-कभी, not always, कभी-कभी. You come across a period from which records are available, but we are not able to derive any kind of meaning out of it. उसको क्या बोलेंगे? Proto-history. यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग होता है, और एक इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग जो नीचे आ रहा है, हिस्ट्री और पास्ट का रिलेशन बताएगा आपको. This would tell you the relation between history and past. What is it? History is the bodies of knowledge, right, about the past produced by historians. इसका ये मतलब है, बहुत सिंपल तरीके से अगर रखना है आपको,
What is our knowledge about the past produced by historians and not by novelists, right? And movie producers, script writers of web series, TV serials, and fast food centers of knowledge. In their term for social media. तो ये सोर्सेस नहीं हो सकते, राइट? दिस इज ए सीरियस बिजनेस. हिस्ट्री क्या है? सीरियस बिजनेस. हिस्टोरियंस आर स्कॉलर्स, रिसर्चर्स. उन्होंने अपना पीएचडी किया होता है और आपको पता है कि दे पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स. इतने कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है? पूरा लाइफ डेडिकेट करने के बाद कुछ लिखते हैं और उसमें इतना एक हम्बल नेचर होता है. They write in this manner, probably happened so. बहुत सारे प्रूफ लेके बोलते हैं probably happened so, क्योंकि इसका एक दूसरा इंटरप्रिटेशन हो सकता है इस तरह से ना. और जिनको कुछ नहीं पता हिस्ट्री का, ये हुआ है, मैं बोल रहा हूँ, what kind of proof do you have? Getting this? You need to understand this one, ठीक है? So इसीलिए मैं आपसे ये बहुत एक important एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ कि do not bring that information which you get from unauthentic sources into the classroom. If you bring it, it would not require for me destroyed in 10 or 15 minutes. Okay, but why to waste even 10-15 minutes in that? हमारे सामने बहुत बड़ा सिलेबस है जो एक साथ में खत्म करना है. So let us stay focused. ठीक है? हाँ, कई बार अलग अलग कॉन्ट्रोवर्सी होती है, लोग कॉन्ट्रोवर्सी में इंटरेस्टेड होते हैं. मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ. लाल बहादुर शास्त्री को मारा गया था, उनको पॉइजन किया गया था. इसके ऊपर मैं लेक्चर दूंगा ना, क्योंकि सो इम्प्रेस्ड, वाओ क्या लेक्चर है ना. लेकिन आज तक जब से यूपीएससी बना है इंडिपेंडेंस के बाद, आज तक कोई सवाल इस तरह से नहीं आया क्रिटिकली एग्जाम में कंट्रोवर्शियल डेटा लाल बहादुर शास्त्री. तो मैं यहाँ पे उसके ऊपर क्यों टाइम वेस्ट करूं? मेरा भी और आपका भी. इज दैट क्लियर? टॉपिक फोकस करना चाहिए. At any point of time आपको लगता है कि मेरा डिस्कशन थोड़ा सा वो सिलेबस से बाहर जाए तो आपसे रोकना चाहिए मुझे. इस तरह अलग अलग रहा है, कैन वी फोकस ऑन सिलेबस? आई वोंट माइंड इट. अगर मुझे लगता है कि मैं जो डिस्कस कर रहा हूं फिर भी इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको ये बता दूंगा कि हाउ इट इज इम्पोर्टेंट एट द मोस्ट. तो आपने ये देखना है कि whether you are reading bodies of knowledge about the past produced by historians, right? और फिर दूसरा आरोप होता है कई बार आजकल पॉलिटिकल डिस्कशन में काफी कुछ होता है. हिस्ट्री that is being taught is the left history, Marxist history, but I tell you one thing. Roughly speaking, there are different perspectives of history, right? Right history भी है, left history भी है, subaltern history है, feminist perspective of history है. There are different perspectives, और हर perspective हमको कुछ ना कुछ एक important dimension बता के देता है, right? और हम यहाँ पे सारे perspective दे करके पढ़ते हैं. आपको मैं एक सिंपल तरीके से बोलता हूं. I don't want to go into details of all those things because it's not optional lecture, right? Rightist history focuses more on the elite लोगों का history, right? जैसे कि political elite लोग होते हैं, right? Cultural elite लोग होते हैं, social elite लोग होते हैं, right? But आपको पता है कि वो history भी important है, right? Because elite history many times has an impact on the society, right? Marxist historians they focus more on socio-economic conditions and common people. तो वो पढ़ना भी जरूरी है. सबाल्टर्न हिस्टोरियंस वो ये बोलते हैं कि समाज के स्तरीकरण में यदि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो सबसे निचला स्तर है, उनके पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री कैसा था वो भी जरूरी है. फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस बोलते हैं कि ये सब ठीक है, ये पूरा मेल हिस्ट्री है. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ विमेन इन दिस सोसाइटी? तो हम वी विल टॉक अबाउट द एलिट्स, वी विल टॉक अबाउट देयर कल्चर, वी विल टॉक अबाउट पॉलिटिकल हिस्ट्री, वी विल टॉक अबाउट सोशल इकोनॉमिक हिस्ट्री, वी विल टॉक अबाउट पोजीशन ऑफ विमेन. You talk about those sections of society which you consider the lowest in the social hierarchy. यहाँ पे while discussing history, bodies of knowledge about the past produced by all types of historians. कोई एक सिंगल नहीं होता यहाँ पे पर्सपेक्टिव, आप ये हमेशा याद रखें, ठीक है? ओके ना, ये यहाँ पे क्लैरिटी मिलती है क्योंकि पास्ट बहुत फैला हुआ शब्द है. इट इंक्लूड्स एवरीथिंग which actually happened, whether known to or written about by historians. ठीक है? जब हमारे पास लिखा जाएगा तो हमारी शादी भी लिखी जाएगी. क्या आपकी शादी हो गई, इतने लोग आए थे, तो बात ये हजारों लोग की शादी होती है, हर रोज हजारों लोग मर जाते हैं, isn't it?
तो आप ये बोलने की कोशिश करें कि पास्ट में जो सब कुछ हुआ वो हम लिखेंगे नहीं, जिसके ऊपर हिस्टोरियंस कुछ लिखते हैं, right? और हिस्टोरियंस उन इवेंट्स को लिखते हैं जिनका कुछ ना कुछ एक समाज के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है, जैसे इम्पैक्ट, राइट, जिससे एक कुछ एक बदलाव आया है जो कि डिफाइन करता है उस इरा को, और इसीलिए नॉट एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट, राइट, but you have to study only that part of the past which has been produced by historians as a body of knowledge. Clear? So history of past condition clear होते हैं. Okay. Now let us go to the next question जो हमने पहले लिखा था. हिस्ट्री में क्या पढ़ना है? अभी तो हमने ये लिखा, ठीक है. I don't know what is happening now. I'm like, okay, this is also live difference. The problem. Okay. This session going on. So the next question is, what do we need to study in history? Now pay attention to me. मैं आपको बार-बार लिख रहा हूँ. क्लास में जनरली देखने को मिलता है, if somebody comes in, somebody sitting somewhere, कुछ हो रहा है तो वो उधर इधर देखते रहते हैं. वो मेरा टॉपिक है क्या पढ़ा है, मैं देख भी रहा हूँ उसको, है ना. But you are looking at everything. This is not the way you approach this examination. ठीक है, you should give attention to what is being discussed here. मैं उसको क्यों नहीं देख रहा हूँ चीजों को, because I don't want any kind of diversion. तो आपको क्यों चाहिए? Why do you need it? Right? तो different subject that we study. History तो यहाँ पे हमारा subject हम जो शुरू किया है, but all the subject that I mentioned, right? तो भी करते हैं, इधर ऊपर सब. So say polity, say economic, geography, कोई भी subject हो for that matter, right? इन सभी subject का एक common denominator है. There's one common denominator of all subjects. What is that? अच्छा, do you understand common denominator? कभी लाइफ में रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा है? और जो मराठी मीडियम के लोग हैं, अपूर्णांकाची बेरीज, अपूर्णांकाची वजाबाकी, तो बुद्धि से लोग हमें तो सही नहीं. सो रेशियो का जब आप सम या फिर डिफरेंस निकालते हो, पहला टास्क क्या होता है? दो जो रेशियो दिया है उसका डिनोमिनेटर कॉमन करना पड़ता है आपको, तभी चाहे कंपैरिजन हो सकता है, अदरवाइज नहीं, राइट. मैं क्या पूछ रहा हूँ, सभी सब्जेक्ट्स का कॉमन डिनोमिनेटर क्या है, मतलब कॉमन क्या है सभी सब्जेक्ट्स में, इन शॉर्ट? यस, एब्सोल्युटली, दे ऑल रिवॉल्व अराउंड ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, बिकॉज़ ह्यूमन बीइंग्स आर utterly selfish. They do not study anything that is not impacting them. Best example is environmental studies, right? Humans have been damaging environment ever since humans were brought into this world. Because only human beings gather and store things. बाकी सारे एनिमल जितना चाहिए उतना लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं. चलो, हम उसको गैदर करते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं, right? So our needs never ended. But particularly since industrial revolution, we have been damaging environment on a large scale. समझ में आ रहा है आपको? तो एक सिंपल सा हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. वो कब हुआ? टुवर्ड्स द एंड ऑफ 18th century इन इंग्लैंड फर्स्ट, और 19th century में अक्रॉस द वर्ल्ड उसका स्प्रेड हुआ. तो हमने पोल्यूट करना शुरू किया, we started over exploiting resources, right, वगैरह. That ended up damaging the entire environment, right? जिसके इम्पैक्ट्स बाद में देखने को मिला. जब तक कि हम लार्ज स्केल पे डैमेज कर रहे थे एनवायरनमेंट को, हम नहीं पढ़ रहे थे उसके. So when we were damaging environment, we did not study it. When the damaged environment started damaging us, we started studying it. So 1950s, 60s में कई सारे साइंटिस्ट ने ये किया that we are damaging environment, right? And that is going to damage us. तब जाकर के स्टडी शुरू हो. तो कुछ भी तब तक नहीं पढ़ते जब तक उसका फायदा हमको नहीं है. समझ में आ रहा है? और ये तो ऐसा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, यहाँ पे तो ह्यूमन बीइंग इज राइट एट द सेंटर ऑफ इट. When we study history, we primarily study history of human life. और जितना भी हम बाकी नेचर पढ़ते हैं वो ह्यूमन लाइफ से जुड़ा हुआ पढ़ते हैं, राइट? कौन से एनिमल्स ह्यूमन बीइंग्स ने यूज किए थे, ये आप स्टोरेज में पढ़ते हैं. Are you getting this? Wild animals कौन से यूज किए थे, डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से यूज किए थे. So history is account of human life. To make it very simple, history is account of human life.
अगर वो ह्यूमन लाइफ का अकाउंट है तो ह्यूमन लाइफ के अलग अलग डायमेंशंस कौन से हैं? व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन लाइफ? कौन से डायमेंशंस है वो? वेरी सिंपल, खुद को देखो. यू आर सिचुएटेड इन ए पॉलिटिकल सिस्टम, राइट? आप एक पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा हो. कैन यू लिव विदाउट पॉलिटिकल सिस्टम? द प्लेन एंड सिंपल आंसर इज नो. और आपको देखना है लाइफ कैसे होता है, तो रेफ्यूजी बन करके कुछ नहीं मिलेगा. इन बिग ट्रबल. आप बाहर नहीं जाओगे, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं. So ह्यूमन लाइफ का एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? पॉलिटिकल एस्पेक्ट, राइट? एक बहुत बड़ा थिंकर है एरिस्टोटल नाम का, नाम जानते होंगे आप. एरिस्टोटल once famously said that if you are living without state, you are either a beast or angel. या तो एनिमल हो जो कि जंगल में रह रहे हैं उस तरह से, या फिर आप एंजल हो, देवदूत बन जाते हैं. इसका मतलब क्या बताएंगे? Everybody needs political system to regulate society. Otherwise, possible नहीं. Aristotle ने भी बोला था that man is by nature political animal. Man is by nature political animal. फिर कभी किसी लेक्चर में आपको समझाऊंगा. आपने जो लोग यहाँ पे बैठ करके सोचे नहीं सर मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, I hate politics. ये सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है. इसको फिर कभी एक्सप्लेन करूँगा, ये थोड़ा प्रिडिक्शन. So we are all political. हमारी लाइफ का political dimension, right? Then it is famously said that is sociality. So we have what is social dimension. And when you live in a society, you have to earn some money. So invariably you have what? Economic dimension. That is why you are there. All of you are sitting in this classroom because you want to get a job. Am I right? अगर यहाँ पे कोई ऐसे बोल रहा है नहीं सर आई एम हियर टू गिव सर्विस टू सोसाइटी, नो फ्रेंड, नो रीजन बदल. आपको सोसाइटी को सर्व करना होता तो आप डॉक्टर प्रकाश समिति को ज्वाइन करते. ये काफी कन्वीनियंट है. पहले आपने एक बेस्ट करियर चूज करो, फिर वहां से बोलो कि समाज की सेवा करना चाहते हैं. तो आपका पहला ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक है. यू वांट स्टेबल करियर, और वो एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. There shouldn't be any kind of problem in that. आप upfront बोलो, I was looking for a stable career, and once I am stable, I can be of some help to the society. So we are not that extraordinary, where who does everything and go and serve society like that article, right? और इसलिए उनको मैगजीन से मिलता है, हमको नहीं मिलता. That's very simple. तो आप उसमें क्लियर है, राइट? आप इकोनॉमिक एस्पेक्ट लेकर के यहाँ पे आए, and everybody has got an economic aspect. मैं यहाँ पे खड़ा हूँ उसी के लिए बात करूँ. मैं आपकी बात क्यों करूँ? मैं अपनी बात करूँ. So everybody is looking for what? Secure kind of a life which is secured by some kind of earning. तो सभी को एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट होता है. एक बार इकोनॉमिक एस्पेक्ट ब्रेक हो गया ना, आपके पास इनफ अमाउंट ऑफ मनी है, ठीक है, आपका पेट भरा हुआ है, सब कुछ चल रहा है, सब ठीक है, आपके पास लेजर टाइम, आप क्या सोचते हो बताइए? अब मैं क्या करूँ? गाना सुनूं, डांस देखूं, मूवी देखूं, कोई नाटक देखूं, कोई एक साहित्य पढ़ूं, क्या करूं? ये है आपकी लाइफ का कल्चरल एस्पेक्ट. गेटिंग दिस? तो ह्यूमन लाइफ के ये एस्पेक्ट्स है. ये तो मैंने जनरल बता दिया, जस्ट ए बेसिक अंडरस्टैंडिंग. बट हिस्ट्री में जब ये ह्यूमन अकाउंट पढ़ा जाता है तो इसमें सारे जो एस्पेक्ट पढ़े जाते हैं उसमें हम क्या पढ़ते हैं, उसको कॉन्क्रीट करना पड़ेगा ना आपके. सो इफ आई से पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे? सो फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन एक एग्जांपल, राइट? कोई भी एक टाइम पीरियड ले लो आप, मॉरियो का टाइम पीरियड ले लो, तो कोई भी टाइम पीरियड. When we talk about political aspect of that time period, we are essentially talking about what? Type of the polity. Polity is political system. Nature of the political system. Administration कैसा है? Are you getting this? और important political events क्या है? प्रत्येक हम क्या समझोगे? अब इसमें कुछ टर्म्स आ रहे हैं जिसमें जैसे कि पॉलिटी का जिक्र आया, पॉलिटिकल सिस्टम का, उसका टाइप क्या है, ये वर्ड आया, और नेचर क्या है, दूसरा वर्ड आया. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस वर्ड्स, टेकिंग सम एग्जांपल्स, बेसिक एग्जांपल्स. मैं आपको यहाँ पे बहुत बेसिक एक एग्जांपल दूंगा सो दैट वी हैव सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इट मींस. So this is where we stop, rather than
Everybody stopped because of electricity issue, right? Okay. हाँ. तो political aspect में क्या है यहाँ पे? Type, nature और polity बोला यहाँ पे, ठीक है? और polity का ही एक हिस्सा क्या होता है? Administration और फिर important political events. मैं एग्जाम्पल लेता हूँ इसका. पहले ये समझते हैं कि what is type of polity. अगर हम ancient medieval past की बात करें, ठीक है? Anywhere in the world, there are two types of polities that we observe. One is monarchy, दूसरा क्या है? Republic. ये रिपब्लिक बिल्कुल मॉडर्न जैसा नहीं है, नॉट लाइक मॉडर्न, राइट? एंशिएंट ग्रीस में रिपब्लिक्स थे, राइट? एथेंस वाज ए रिपब्लिक, स्पार्टा वाज ए मोनार्की. लाइकवाइज एंशिएंट इंडिया में मोनार्कीज एंड रिपब्लिक्स. मगध जो था साम्राज्य वो क्या था? मोनार्की. लेकिन वज्जी महाराष्ट्र वाज ए रिपब्लिक, राइट? तो ये दो टाइप की पॉलिटिकल टाइप हो गया. दिस इज टाइप. अगर मॉडर्न टाइम में आओगे, देयर आर नंबर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स, right? So you can broadly divide them into democratic and undemocratic, right? In democratic, you can talk about presidential type of democracy and then parliamentary type of democracy, right? जो undemocratic है उसमें फिर अलग-अलग types है. Dictatorship of an individual, dictatorship by a political party. हाँ, फिर कम्युनिस्ट पार्टी का अपना अलग सिस्टम है, उसको आप कम्युनिस्ट सिस्टम बोलते हैं, जो कि चाइना का एग्जांपल है. मॉडर्न में तो बहुत सारे पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, राइट? है ना? तो ये हो गया टाइप. नेचर क्या है? व्हाट इज नेचर? देखो, पॉलिटिकल सिस्टम कोई भी हो, उसका नेचर आप एक एग्जांपल के तौर पे वो कितना सेंट्रलाइज्ड है या फिर कितना डिसेंट्रलाइज्ड है, और कैन बी कॉल इट वेलफेयर स्टेट. ये शब्द क्या डिस्क्राइब कर रहा है? नेचर ऑफ द पॉलिटी. क्या डिस्क्राइबिंग व्हाट? नेचर ऑफ द पॉलिटी. So this is type and this is nature. Okay. तो ये जो है ना सेंट्रलाइज्ड है, डिसेंट्रलाइज्ड कैसा है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी आपको नेचर बता रहा है. एडमिनिस्ट्रेशन इज डिसेंट्रलाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी मच पार्ट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड पॉलिटिकल सिस्टम या फिर पॉलिटिक्स, राइट? ओके. एंड देन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स. मैं आपको एग्जांपल दूंगा. लेट अस टॉक अबाउट मौर्य एम्पायर. ठीक है? मौर्य एम्पायर कैसा था? इस टाइप का. टू मेक इट मोर स्पेसिफिक, हेरिडिटरी मोनार्की मींस व्हाट? फादर के बाद बेटा राजा बने, हेरिडिटरी मोनार्की, राइट? इट इज सेड दैट मौर्य एम्पायर बाय नेचर वाज सेंट्रलाइज्ड वन, और उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी काफी सेंट्रलाइज्ड था, राइट? दैट इज नेचर. मौर्य एम्पायर में वेलफेयर स्टेट का भी कॉन्सेप्ट था, पर्टिकुलरली अशोक के समय. ये भी दिखा दिया, उसके पहले भी था, लेकिन अशोक के समय तो ज्यादा हो गया. नेचर हो गया. हाँ, कलिंग वॉर इज एन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट ड्यूरिंग मौर्य एम्पायर. वो मिलिट्री इवेंट भी है, पॉलिटिकल भी है, क्योंकि अशोक का पूरा पॉलिसी चेंज हो गया, चीजों को देखने का उसका नजरिया चेंज हो गया. सो एम्परर का पूरा आउटलुक चेंज हो गया कलिंग वॉर के बाद. तो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट. क्लियर? सो दिस इज अबाउट पॉलिटिकल एस्पेक्ट. ये सब हम पढ़ते हैं. अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं से मुगल एम्पायर मिडिवल टाइम्स में, तो उसी तरह से आप बात करोगे. हाँ, इन कंपैरिजन टू मौर्य एम्पायर इट वाज डिसेंट्रलाइज्ड. इन कंपैरिजन टू मौर्य एम्पायर, मुगल एम्पायर वाज डिसेंट्रलाइज्ड. बोथ वे ऑफ दिस टाइप, हेरिडिटरी मोनार्की, राइट? मोनार्की. और ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन पे डिसेंट्रलाइज्ड था. ठीक है? इंपॉर्टेंट कोई पॉलिटिकल इवेंट मुगल एम्पायर की, the way Akbar handled Rajputana, that laid the foundation of Mughal-Rajput relationship that continued till Aurangzeb. Aurangzeb didn't tolerate, disturbed that alliance, and that is one reason as to why Mughal Empire declined. So important political events. समझते हैं? You take any example for that matter. इस तरह से पढ़ना है. ये हो गया political aspect. Social aspect. इसमें कुछ terms है. Nature, structure of society. पहले हम इसकी बात करते हैं. Let us talk about structure, right? आप structure जब बोलते हो सोसाइटी का, है ना? सोसाइटी में अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर हो सकता है.
मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ जो आप आज समझ सकते हो। ठीक है, एक सोसाइटी है, हायर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर। ये पता होगा ना, वी आर मिडिल क्लास फैमिली तो बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्लास बेस्ड स्ट्रक्चर है सोसाइटी का। क्या स्ट्रक्चर है? क्लास बेस्ड स्ट्रक्चर, राइट। और आपको पता है क्या, ये क्लास बेस्ड जो है ये पर्टिकुलरली यूरोपियन सोसाइटी के बारे में सही था। अगर आप पीछे जाओ तो पास्ट में आज ऑलमोस्ट हर सोसाइटी में इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, राइट। लोअर क्लास, मिडिल क्लास एंड हायर क्लास, मिडिल क्लास, राइट। इंडिया में इफ यू टॉक अबाउट पास्ट, हिस्टोरिकल पास्ट ऑफ इंडिया, इवन टुडे फॉर दैट मैटर, को लाना चाहिए, Indian society is characterized more by class than class, right? तो हमारा सोसाइटी कैसा है? कास्ट बेस्ड सोसाइटी, राइट। और वो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये सिंपल था, कैसे बनता है वो? और ये जो है ना, इसको मैं जूम करके और ऐड कर सकता हूँ। कास्ट, सब कास्ट इतने हैं ना, राइट, इंसान तो उलझ जाता है। सो दिस इज द हायरार्की। सो क्या बोलेंगे? हायरार्की। ये होता है दूसरा बेस। तीसरा एक है जो हर जगह पे वो एनी पार्ट ऑफ जेंडर, राइट। ये स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, राइट। तो टॉक अबाउट स्ट्रक्चर, और जो स्ट्रक्चर है वो अगर हायरार्किकल है और उसमें ये नोशंस है, ऊंच नीच के नोशंस, कोई श्रेष्ठ है कोई कनिष्ठ है, इस तरह से, राइट। सो दैट इज कॉल्ड हायरार्किकल काइंड ऑफ सोसाइटी। और अगर उसमें डिस्क्रिमिनेशन है तो आप क्या बोलोगे? सोसाइटी डिस्क्रिमिनेटरी है। तो आप क्या बता रहे हो? नेचर ऑफ सोसाइटी, राइट। सो आप जब बोलते हो कि सोसाइटी इज पेट्रियार्कल, आप क्या बोल रहे हो? एसेंशियली नेचर ऑफ सोसाइटी। तो मैं आपको, राइट। So this is called nature. So nature and structure of society. Third aspect, that is economic aspect. उसमें क्या क्या है? फिर से टाइप है, मेजर ऑक्यूपेशन, ये मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है। लेट्स फोकस ऑन दिस पार्ट। मैं आपको एक चीज बताऊंगा जो कि एप्लीकेबल है हर जगह पे, गो टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन जनरल आई एम सेइंग देयर कुड बी एक्सेप्शंस, राइट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज सिमिलर, आई एम नॉट सेइंग सेम, सिमिलर। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनीवेयर पासेस थ्रू these phases। एक पहला जो फेज होता है वो कौन सा है? नोमैडिक। दूसरा जो है इट इज कॉल्ड पैस्टोरल। तीसरा एग्रीकल्चरल, फोर्थ मर्केंटाइल एंड फिफ्थ इंडस्ट्रियल। आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो आगे जाकर, ठीक है, हम बात करेंगे उसके बाद। बट दिस मच इनफ एज फार हिस्ट्री इज कंसर्न्ड, राइट। आप ये वर्ड तो you might have come across this word, right? Nomadic, pastoral, you know. And economy is nomadic, right? When the major occupation happens to be hunting and gathering. सोसाइटी में अगर hunting gathering major occupation है, that is called nomadic economy, right? Now another question comes in. Major occupation किसने बोलेंगे? Which occupation will be called as major occupation? ये दो क्राइटेरिया है जिसको आपको ठीक से इवैल्यूएट करना पड़ेगा। एक, number of people involved in that occupation, right? Number one. Number two, the extent to which that occupation contributes to total economy. पूरे इकोनॉमी में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, ये दोनों ठीक से देखना पड़ेगा, राइट। इफ यू गो बाय merely one category, जो पहला है number of people, more often than not you end up describing that economy in wrong way, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, हमारा अपना एग्जांपल आज का। Today's Indian economy, if you go by number of people involved in the occupation, becomes agricultural economy because more than 50% people in India are involved in agricultural allied activities. Am I right? Right? That is not enough. Agriculture contributes to Indian economy hardly 15 to 16% में, probably इधर-उधर हर ईयर का statistics change होता है, right?
The major contribution to Indian economy, that is 60% of the GDP, comes from what is called service sector, right? So Indian economy is based economy. As the Indian economy is service-based economy, and service-based economy, या फिर वो service sector is not generating enough jobs in India. वो हमारा problem है. मैं उसके लिए अभी नहीं जाऊँगा. Right? You will talk about that somewhere in different lectures, right? So service-based economy, and this is modern development. सर्विस बेस्ड इकोनॉमी कहां से बनना शुरू हो गया 1970s 80s पहले वो यूएस जैसे इकोनॉमी सर्विस बेस्ड बने और एलपीजी अडॉप्ट करने के बाद हम भी सर्विस बेस्ड इकोनॉमी राइट तो जब बेसिक ऑक्यूपेशन ये है और ये इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी को टोटल इकोनॉमी को तो उसको बोलेंगे आप नोमैडिक इकोनॉमी कई बार नोमैडिक एंड पैस्टोरल एज कंसीडर्ड एज सिनोनिम्स दे आर नॉट ठीक है और दोनों में एक अंतर है राइट तो नोमैडिक पैस्टोरल इकोनॉमी क्या है यहाँ पे मेजर ऑक्यूपेशन क्या होता है कैटल रिवरिंग एंड ब्रीडिंग तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स दैट बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी कैटल रिवरिंग एंड ब्रीडिंग उसको बोलोगे पैस्टोरल इकोनॉमी राइट ये जो है कैटल ब्रीडिंग एंड ब्रीडिंग ये आपका नोमैडिक लाइफ कम कर देता है व्हाट इज नोमैडिक लाइफ भटकने का लाइफ भटकने का है ना स्टोरेज में इंसान शिकार के लिए निकलता था हर रोज राइट जब उसको पता चला कि अगर एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया जाए और मेरे पास 50 एनिमल है तो नेक्स्ट 12 मंथ देखने की जरूरत नहीं हर रोज एक मंथ में खाओ तो लाइफ बिकम्स स्टेबल राइट आगे जा करके फिर ऐसा नहीं कि बस इंसान सब कुछ नॉनवेज खाता था तो ही हैज टू गैदर फ्रूट्स एंड डिफरेंट अदर थिंग्स फ्रॉम द नेचर राइट फिर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ह्यूमन बीइंग्स understood the art of cultivation. तो उससे क्या शुरू होता है एग्रीकल्चर और आगे जाकर के एग्रीकल्चर becomes the most important occupation ठीक है the economy becomes agriculture economy right so major component ये बन जाता है अब यहाँ पे ये सोचो आप so एग्रीकल्चर जो important बना तो इंसान सेटल हो गया राइट तो इंसान कहाँ सेटल हो गया देखो नहीं ज्यादा मत सोचो सिंपल बात एग्रीकल्चर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है एंड देन अबंडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर तो ये जो कंडीशन से कहाँ मिलते हैं रिवर वैलीज में तो सिविलाइजेशंस sprang up across river valleys राइट तो इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडस वैली गंगा वैली विद द मेजर क्रेडल्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन राइट रिवर वैलीज में भी जो लोअर पार्ट ऑफ द रिवर होता है ना वो क्योंकि एल्यूवियल सॉइल वहां बनता है राइट रिवर की कोर्स से उसका इरोजन है उसकी वजह से एल्यूवियल सॉइल्स आर वेरी फर्टाइल जब ये सेटल हो गया पहले फिर इसके पहले इन लोगों ने शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया था उसको झूम कल्टीवेशन बोलते हैं राइट यहाँ कल्टीवेट करो फिर वहां करो और जहाँ पे पता लगा कि हाँ यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन तो यहाँ पे रुक जाते हैं है ना अब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है राइट उसको बोलते हैं सरप्लस प्रोडक्शन कोई भी फार्मर जो हार्वेस्ट होता है आफ्टर सोइंग द सीड जब क्रॉप ग्रो होता है एंड ही हार्वेस्ट राइट सो बेसिक इकोनॉमिक दैट फार्मर अप्लाइज इज व्हाटएवर what they do is at one place they would stand right they would stop they would cultivate और जब वहां का प्रोडक्टिविटी ड्रॉप हो जाएगा फिर दूसरी जगह पे जाएंगे that is called zoom cultivation ठीक है ओके सो फार्मर का इकोनॉमिक्स कैसे चलता है बताइए आपको आज भी राइट व्हाटएवर प्रोडक्ट ही गेट्स फ्रॉम द हार्वेस्ट राइट उसका एक हिस्सा वो रख देता है ही हैज गॉट दैट एस्टिमेट राइट व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर माय फैमिली थ्रू आउट द ईयर उतने फूड ग्रेन्स अपने पास रखेगा और जो सरप्लस उसको मिला है वो क्या करेगा मार्केट में बेचेगा क्या शुरू हुआ ट्रेड so the next occupation is trade and commerce and when people देखो जब आपके देखो पैसा चुप बैठने नहीं देता आपको money and is the surplus तो इंसान की डिमांड बढ़ने लगते हैं the moment you have something surplus you start demanding better clothes you know shoes you know agricultural equipments
So farmers started generating demands. यानी better pottery, अच्छी ceramic pottery चाहिए मुझे. ये कब बोलते हैं सर? जब पैसा आने. जब surplus production हुआ, तो people started demanding different goods. इसलिए अलग-अलग industries बने. मतलब बहुत बड़े इंडस्ट्री के बारे में मत सोचना. कारपेंटर का इंडस्ट्री बना, ज्वेलर्स का इंडस्ट्री बना, ज्वेलरी का, ठीक है, आयरन स्मिथ का इंडस्ट्री बना. गेटिंग दिस? तो इस तरह से अलग अलग इंडस्ट्रीज बने. दे स्टार्टेड गिविंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स टू फार्मर. तो ट्रेड एंड कॉमर्स का एक माहौल बन जाता है. शुरुआत में करेंसी नहीं थी, बस बार्टर ट्रेड. ये जो है ना आयरन स्मिथ, कारपेंटर, ज्वेलर, ये लोग क्या चाहते हैं? फूड ग्रेन्स. किसके पास है? फार्मर के पास. वो फूड ग्रेन देगा और ये लोग उसको जो चाहिए वो देंगे, जो ये बनाते हैं. बार्टर सिस्टम. ओके. आगे जाकर के जब करेंसी रिजर्व हुआ तो और ज्यादा ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ गया. At some point of time, when trade and commerce become the major occupation, that economy is for mercantile economy. वो कौन सा economy है? Mercantile economy. Interesting बात है, despite there being no currency as such, हमको evidence तो नहीं मिला. Harappan civilization was mercantile economy. ठीक है? हाँ, okay. हमने ये देखा कि ट्रेड एंड कॉमर्स जब बढ़ता है तो लोगों की मांगे बढ़ती है अलग अलग प्रोडक्ट के लिए. That is contributing to what? Rise of different industries. And slowly we are coming towards industry. Major occupation क्या होगा? Manufacturing. That are different industries. समझ में आया? अब ये बात अलग है, आगे जाकर के सर्विस डिमांड बढ़ गई. सर्विस बेस्ड इकोनॉमी, राइट? उसके बाद डिजिटल इकोनॉमी. We are living in digital economy. उसमें बोलते हैं we are living in knowledge economy. We are living in data fied world. वगैरह. ये मॉडर्न करंट का पार्ट हो गया. और मैं इतिहास में बसता हूँ. और मेरा क्लास somehow, right? So this is enough for us to understand जो अलग अलग स्टेजेस है हिस्ट्री में, राइट? वो तो करंट का पार्ट हो गया. आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे सब कुछ. व्हाट इज डिजिटल इकोनॉमी, व्हाट इज डिजिटल इवोल्यूशन, राइट? व्हाट इज नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, हाउ डेटा is important today, how WhatsApp, Facebook, Instagram, okay, Twitter, exploit you. Absolutely. ये इंडिया का स्टैंड पॉइंट है, मेरा नहीं. We are now talking about data colonialism. हमको colonialism पढ़ना है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था और बाकी ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उसके रूप के अंडर थे ना. आज we are exploited by data. आपको पता है कि हर इंसान मुफ्त में अपना डेटा अपलोड कर रहा है. किसके ऊपर? फेसबुक, है ना? एंड देन व्हाट्सएप के लोग भी आप डिस्कशन करते हैं, मैं इधर गया था. लोग इंस्टाग्राम पे डालते हैं, मैं हॉलिडे पे गया था. आपको पता है कि the moment you do that, नेक्स्ट डे आपको कॉल आना शुरू होता है हॉलिडे पैकेजेस पर. इंस्टाग्राम के ओनर ने और फेसबुक के ओनर ने आपका डेटा बेच दिया उन कंपनीज पे. तो फायदा वो कमा रहे हैं आपके बेसिस पे. तो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं करूंगा आपको, बट मुझे आपको कर्नलिज्म पढ़ाना है. किस तरह के एग्जांपल्स देता हूं, ठीक है? उस समय जो इंडिया कंपनी हमारे साथ कर रही थी ना, आज कुछ और कंपनीज कर रही है, ठीक है? और इसको क्या बोलते हैं पता है क्या? न्यू कॉलोनियलिज्म. दिस इज कॉल्ड. So I will give you present examples in order to understand how East India Company treated us, right? है ना? Okay. और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ठीक है? ये सब मैं बातें कर रहा हूँ ना, आई एम सराउंडेड बाय यूएस. सर्विलेंस चल रहा है मेरा. माइक्रोसॉफ्ट किसका है? यूएस का. माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जो एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं या फिर जूम वगैरह यूएस का. ये प्रोजेक्ट किसने बताया? यूएस में. You talk about everything. We are surrounded by American goods. इसको एक टर्म है, Pax Americana. We are living in the world of Pax Americana. ये मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूँ? क्योंकि पहले हमारी हिस्ट्री में Pax Britannica ये पॉलिसी थी. So we will be taking analogies from present world, right? To understand history in a better manner. Don't worry about it. एक अलग आता है क्लियर ऑन दिस इकोनॉमिक एस्पेक्ट. ये जो कल्चरल एस्पेक्ट है ना दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, ये मैंने सीधा उठाया है दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज डायरेक्टली मेंशन्ड इन द बेस्ट गाइस. ये मैंने ऐड किया था
कोई मतलब बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। Let's talk about art forms first, ठीक है। आर्ट फॉर्म्स का मतलब क्या है, व्हाट ऑल थिंग्स कम अंडर दिस, राइट। यू कैन टॉक अबाउट म्यूजिक, राइट, यू कैन टॉक अबाउट डांस, पेंटिंग, राइट, स्कल्पचर से फॉर एग्जांपल, आर्किटेक्चर, ये सारे आर्ट फॉर्म्स हैं। These are all art forms. I will talk about architecture first. If you talk about Indian history, architecture अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। In fact, architecture becomes museum of the rest of the arts. ठीक है? इसमें जो पहले दो ना म्यूजिक एंड डांस, इनको बोला जाता है परफॉर्मिंग आर्ट्स। इसको क्या बोलते हैं? परफॉर्मिंग आर्ट्स। इनकी परफॉर्मेंस होता है। बाकी जो है आपको सामने दिखते हैं, पेंटिंग सामने होता है, स्कल्पचर सामने होता है, लेकिन डांस एंड म्यूजिक जब तक कि वो आर्टिस्ट परफॉर्म नहीं करता आपको दिखता नहीं है। तो जो परफॉर्मिंग आर्ट्स, राइट। आर्किटेक्चर में सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग फीचर था स्कल्पचर। एक एग्जांपल ले लो, टेंपल आर्किटेक्चर एंशिएंट टाइम में जो हुआ, किसी भी टेंपल में जाओ पुराना, उसका कोई भी प्लेस ना ऐसे प्लेन नहीं होगा जैसे कि दिख रहा है। हर जगह पे कुछ ना कुछ स्कल्पटिंग हुआ है। स्कल्पटिंग मतलब चिन्नी हथौड़ी करके चीजें बनाना, मूर्तियां बनाना, डिजाइन बनाना। देयर इज सो मच डिजाइन, नॉट अ सिंगल प्लेस पेंट ऑलमोस्ट, राइट। तो इट इज म्यूजियम ऑफ स्कल्पचर। कई सारे टेंपल्स में पेंटिंग है टेंपल वॉल्स के ऊपर, है ना। और टेंपल्स में दोनों परफॉर्मेंस होते थे, म्यूजिक एंड डांस। समझ में आ रहा है? मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम में तीनों एलिमेंट्स है, पता है आपको? वो नाट्य शास्त्र से आता है। कौन से तीन एलिमेंट है? नाट्य, नृत्य और संगीत। तो ड्रामा, डांस एंड म्यूजिक। एक म्यूजिक होता है, राइट, उससे कोई भाव बताया जाएगा और डांस के थ्रू आर्टिस्ट उस भाव को आपको प्रेजेंट करेंगे। समझ में आ रहा है? सो दिस इज हाउ इट इज परफॉर्म। आपको पता है इट इज 2000 ईयर ओल्ड डांस, ओरिजिनेट समवेयर इन तमिलनाडु, ठीक है। एंड उसके जो रूल्स है, अभिनय दर्पण नाम के बुक में उसके रूल्स है, नाट्य शास्त्र में कुछ हद तक। और ये जो डांस का ट्रेडिशन है हमको कैसे पता चला? बिकॉज इन टेम्पल प्रीमाइसेस देवदासीज कंटिन्यू दैट ट्रेडिशन। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दैट देवदासी ट्रेडिशन बिकेम करप्ट, पीपल क्रिटिसाइज्ड इट, वो बंद हो गया। फिर कुछ मॉडर्न डांसर्स ने उसको रिवाइव किया। आज उसको एक स्टेज परफॉर्मेंस प्रेजेंट किया जाए। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। सो टेम्पल्स आर्किटेक्चर का पार्ट है, लेकिन सारे उसमें होगा ना, सारे आर्ट फॉर्म्स आ रहे हैं, इसलिए आपको उसको अलग से पढ़ना पड़ता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड आर्ट फॉर्म्स। बाकी आर्ट फॉर्म जो उसको हम अलग से पढ़ेंगे, म्यूजिक को अलग से, डांस अलग से, पेंटिंग, स्कल्पचर। समझ में आ रहा है आपको? सो दिस इज अबाउट आर्ट फॉर्म्स। देन देयर इज व्हाट इज कॉल्ड लिटरेचर, ठीक है। But before you talk about literature, you have to talk about the language in which the literature was written. और उसका अपना एक इतिहास है इंडिया में, right? Language का अपना इतिहास है। What is it? See, development of language India में संस्कृत नॉर्थ में, right? और साउथ में तमिल। उसके पहले कौन सी भाषा बोली जाती थी? We don't know. हर उसका स्क्रिप्ट डिसाइड नहीं हुआ, उनका लैंग्वेज क्या नहीं जानते, right? संस्कृत, प्राकृत, पाली, ये एंशिएंट लैंग्वेज है हमारे, और तमिल साउथ में, ठीक है। आगे जाकर के अलग अलग रीजनल लैंग्वेज डेवलप हुए टुवर्ड्स द एंड ऑफ एंशिएंट टाइम्स एंड बिगिनिंग ऑफ अर्ली मिडिल, राइट। और वो डेवलप कैसे हुए? नॉर्थ में पर्टिकुलरली जो प्राकृत के अलग अलग वेरिएशंस बने, रीजनल वेरिएशंस, तो उसके एक अलग अलग डेवलपमेंट, अलग अलग फॉर्म्स। और जो लास्ट पार्ट था डेवलपमेंट का, अपभ्रंश बोलते हैं उसको, राइट। प्राकृत का लास्ट फॉर्म, उस अपभ्रंश से फिर अलग अलग जो देशी भाषा है वो डेवलप होता है, मराठी, गुजराती, बंगाली, पंजाबी, राइट। सो दिस इज डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस। फिर उनमें लिटरेचर मिडिवल टाइम्स में हिंदी में डेवलप आगे जाकर साउथ में उसी तरह से तमिल के बाद ग्रेजुअली, राइट, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, these languages डेवलप, राइट। और इन हर लैंग्वेज में लिटरेचर है, समझ में आ रहा है आपको? सो दैट वी आर सपोज्ड टू स्टडी। हां, इस बार देखो संदर्भ लिटरेचर के ऊपर सवाल आ रहा है प्रीलिम में। आपको कन्नड़ लिटरेचर के ऊपर सवाल आ सकते हैं, क्योंकि
फॉर एग्जाम्पल राष्ट्रपिता के अंदर कन्नड़ लिटरेचर बना, ठीक है, विजयनगर के अंदर कन्नड़ लिटरेचर बना, तेलुगु लिटरेचर बना, कृष्णदेवराय खुद तेलुगु का एक्सपर्ट था, उसने बुक लिखा उसमें, ठीक है। सो इसके ऊपर सवाल आ सकते हैं पत्रकार करके, ठीक है। Literature in different languages can be divided into two parts: religious and secular. Okay, there is a lot of religious literature, right? We will be discussing about Hindu religious literature, then we talking about Buddhist literature, Jain literature, etc. और मैं आपको तो वो हो गया एक आस्पेक्ट लिटरेचर। दूसरा कौन सा? सेक्युलर लिटरेचर। उसका एक एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल फॉर मेंशन लिया अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, right? And there are different other examples, जैसे कि आर्यभट्ट का contribution to astronomy, mathematics, ब्रह्मगुप्त contribution to astrology, astronomy to some extent, right? There are also the contribution to medicine, Charak Sahita, Christian side. So इसका से कई सारे books हैं, historical writing भी हुआ, particularly in medieval times, right? There are a number of books written by different people, जैसे कि अबुल फाजिल wrote Idea Akbar, एक एग्जांपल देता हूँ। कई सारे फॉरेन ट्रेवलर्स अकाउंट्स हैं जो कि लिखे गए, राइट। एशियन ड्राइविंग वन सन आई सिंह, है ना, चाइनीज ट्रेवलर्स, आगे जाकर के मोरक्कन ट्रेवलर्स, है ना, यूरोपियन ट्रेवलर्स व्हिच केम टू इंडिया, अल बिरूनी आया था, राइट। तो उसने भी एक बुक लिखा है तहकीक ए मालिक हिंद नाम का, इंडिया के बारे में, राइट। सो वी विल टॉक अबाउट दोस बुक्स एज वेल। बहुत लिटरेचर है, ठीक है। सो दैट विल बी कैटेगराइज्ड इन टू कैटेगरीज, रिलीजियस एंड सेक्युलर लिटरेचर। समझ में आया इसमें क्या क्या पढ़ना? अभी तक मेरा टॉपिक शुरू नहीं किया, बैकग्राउंड देखो। आपने देखा कि फास्ट बॉलर बहुत दूर से दौड़ के आता है, वो क्यों? उसको रनर बोलते हैं, क्यों? क्या स्पिन बॉलर्स होते हैं कई सारे, अजीब तरीके के उनके रनअप होते हैं, हर बजे से उड़ता हुआ आता था, मुझे पता नहीं क्या क्या करता था, अजीब लगता था देखकर। तो ऐसी हरकतें क्यों करते हैं लोग? हरकत नहीं है वो, ना वो डिजायर्ड इम्पैक्ट देता है बॉल को। एक फास्ट बॉलर कौन सा इम्पैक्ट चाहता है? स्पीड की। स्पिनर स्पिन, गेटिंग दिस? और भी चीजें मैं नहीं जानूंगा। हम जब खेलते हैं ना क्रिकेट, तो मैं हमेशा जानता था कि कोई बॉलर कितना फास्ट है। कुछ लोग होते स्कूल में, कॉलेज में कि बहुत लंबा रन लेंगे, है ना, बहुत भाग के आएंगे, क्रीज के पास रुक जाएंगे। इट्स मोमेंटरी, इट्स मोमेंटरी। एज अ बैट्समैन मैं जानता था कि वो रुका आ रहा है बीच में, है ना, मतलब स्लो बॉल, कोई ज्यादा फास्ट नहीं। अरे फास्ट बॉलर में जो बॉडी का मोमेंटम है ना, क्रीज पर लेके जाते हैं, इसीलिए वो कभी गिरते भी देखो आप, तो वो फास्ट बॉलिंग होता है, इफेक्ट मिलता है, ये अलग है। इससे आपको पता चलेगा कि हम इंडियन हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे। नाउ यू हैव गॉट सम फेयर आइडिया कि हिस्ट्री ये होता है। फिर आपको ये डिसाइड करना है कि कौन से एस्पेक्ट पे यूपीएससी आपको फोकस करने के लिए बोल रहा है, कौन सा एस्पेक्ट पढ़ना है, कौन सा ज्यादा पढ़ना है, कौन सा कम पढ़ना है। तो पहले तो पता होना चाहिए, यू शुड नो ऑल दीस थिंग्स, राइट। नाउ वी कम टू आवर टॉपिक, व्हाट इज इंडियन हिस्ट्री। And in the discussion, I have talked about this, right? So, history of India, for that matter, you know, begins with Vedic age. इसलिए नहीं कि हम हिंदू हैं सर, है ना, वैदिक एज से शुरू कर रहा है, या स्पेशली लाइक नो इसको देख रहा है। अगर एज के यहाँ से आपको रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं और आप उसको पढ़ पाओगे, जैसे कि अर्बन सिविलाइजेशन, तो हम क्या लिखेंगे फिर यहाँ से? हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिगिंस विद अर्बन सिविलाइजेशन। But unfortunately, we are not able to understand the Harappan script, तो बन जाता है problems, right? और यहाँ की जो records हैं, वो oral records हैं, right? In the form of Vedic literature, right? चार वेद और उसको जो appendices जोड़े गए हैं, ब्राह्मण, अरण्यक, उसके बाद ना वो, so Vedic literature. Harappan civilization is a classic case of proto-history, जहाँ से records available is we are not able to read it, right? And then anything that goes beyond the Harappan civilization, that is called pre-history, उसमें stone age की चार stages आते हैं, Paleolithic, Neo, Chalcolithic, right? So this is history of India. इसको आप आगे लेकर के जाओ, मतलब हमारा first part कौन सा है हिस्ट्री का?
इसमें 4 पार्ट्स है, पैरालिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड कैथोलिथिक, राइट। फिर हम पढ़ेंगे दूसरा पार्ट अर्बन सिविलाइजेशन। तीसरा पार्ट कौन सा है हमारे हिस्ट्री का? वैदिक एज, राइट। इसके बाद क्या आता है? पोस्ट वैदिक या फिर पीरियड ऑफ मॉडर्न। उसके बाद क्या आता है? मौर्य पार्ट। उसके बाद क्या आता है? पोस्ट मौर्य पीरियड, ओके। उसके बाद गुप्त काल। उसके बाद क्या आता है? पोस्ट हर्षवर्धन का डेथ, एंड ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, राइट, इन शॉर्ट। फिर मिडिवल में 2 है, अर्ली एंड, ठीक है, अर्ली मिडिवल, मिडिवल। इसमें नॉर्थ एंड साउथ में कुछ हुआ, या फिर ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल है, यहाँ पे चोल एम्पायर, राइट। इधर क्या है? दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, राइट। और इसमें 2 है, इंपीरियल मुगल्स एंड टेटल मुगल्स ने मराठा एम्पायर, रिप्लेस बाय ब्रिटिश एम्पायर, मॉडर्न हिस्ट्री, रिप्लेस बाय न्यू एम्पायर, पोस्ट इंडिपेंडेंस, और टू मोदी एम्पायर। ये जो ये आ गया डेमोक्रेसी, खत्म हो गया हिस्ट्री। इसका डिटेलिंग आप करते रहोगे, डोंट वरी, फिल अप विद टेस्ट, राइट। नंबर ऑफ थिंग्स विल कम। जैसे कि ब्रिटिश हिस्ट्री के बारे में बात करोगे, ब्रिटिश एम्पायर, इसके थोड़ी कंपनी रूल, क्राउन रूल में फिर वो पीरियड ऑफ राइजिंग इंडियन नेशनलिज्म और इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसके फिर कोई निश्चित, राइट, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट, गांधी वगैरह वगैरह, दैट वी कैन डू, राइट, है ना, ओके। तो ये हिस्ट्री है इंडिया, इंडियन हिस्ट्री, ये सब पढ़ेंगे, ओके। Next lecture, I will be taking little bit detailed outline to get idea of entire history of India. फिर हम शुरू करेंगे जो actual अलग-अलग chapters हैं। Now, ये होने के बाद you are in the position to understand syllabus of history. ये भूल जाओ मुझे लीजिए, just ignore this for a moment, ठीक है। प्रिलिम में बस 1 लाइन का सिलेबस है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, राइट। अगेन द सेम थिंग, इंडियन नेशनल मूवमेंट इज वेरी मच पार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, लेकिन अलग से लिखा है उसको, ये रिटन सेपरेटली, राइट। क्यों? क्योंकि इससे कुछ विशेष दिया है, द एम्फेसिस वुड बी मोर ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट इन जनरल। There will be exceptions. And last year का जो printed paper है, that was this year का, sorry, that was an exception. 2013 में फॉर्मेट बना, पहली बार मुझे एक्सेप्शन मिला this year, right? इसका मतलब क्या है पता है क्या? ये इस सिलेबस का मतलब हिस्ट्री ऑफ इंडिया में क्या 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 आता है? एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। मॉडर्न शुरू होता है आपका 18th सेंचुरी से, बैटल, तो कंपनी का रूल, राइट। और बाद में क्या है? क्राउन रूल। इसमें 1885 टू 1947 ये है आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट। मतलब एंशिएंट से लेकर यहां तक बहुत बड़ा हिस्ट्री है, ह्यूज हिस्ट्री, राइट। इसके ऊपर जितने सवाल आएंगे, ऑलमोस्ट उतने का सवाल इसके ऊपर आएंगे, राइट। हाँ, तो मैथमेटिक्स उतना नहीं चलता सोशल साइंसेस में, बट जस्ट टू गिव एन आइडिया कि आपका एम्फेसिस कहां होना चाहिए इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर। बट यूपीएससी इज नोन फॉर थ्रोइंग सरप्राइजेस, और उसके लिए आप जाकर के रोड क्रॉस नहीं पूछ सकते क्या लिखा आपने, क्या पूछा, बट इफ इट गेट्स इट्स कंपटीशन, इट्स ऑल राइट, देयर इज नथिंग लाइक आउट ऑफ सिलेबस स्टफ। इस बार क्या हुआ, एंशिएंट में बहुत सारे सवाल डाले थे, तो सरप्राइजिंग था, ठीक है, बट सरप्राइजेस आर ऑलवेज देयर। और वो कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना, 7 लाख लोग बैठ गए और उनको मेंस के लिए बस 10-15 हजार लोग चाहिए, तो हाउ टू एलिमिनेट विदाउट मेकिंग इट डिफिकल्ट? तो वी हैव टू बी रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, राइट। तो उसकी प्रिपरेशन कैसी करनी है, उसी की बात करने वाले साल में, डोंट वरी। सो कभी कभार होगा, अब हमेशा नहीं। आप देखो देखते फिर वो क्वेश्चन बढ़ेंगे मॉडल के ऊपर, ऑलरेडी दिस, तो आपका जनरल इंटरेस्ट ये होगा। आप इसको ब्रेकअप करना है, राइट। ये बहुत जनरल है, इसमें पढ़ेंगे क्या, एक लाइन का हिस्ट्री ऑफ इंडिया क्या पढ़ना है, दिक्कत होती है, राइट, है ना। तो मेंस का सिलेबस आपको थोड़ा हेल्प कर देता है, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स,
आपको जितने सवाल है वो कैसे आए मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। एज पर एज एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री इज कंसर्न्ड, फोकस इज ऑन कल्चर, प्रीलिम में भी, ठीक है। और कई बार जो सवाल आए हैं बाकी एस्पेक्ट्स के ऊपर, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ये कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है, राइट। तो उस तरह के सवाल आ रहे हैं। तो अप्रोच क्या होना चाहिए हमारा, जो कि हम बाद में समराइज करेंगे उसको। मेजर फोकस वुड बी ऑन कल्चर विद फेयरली गुड आइडिया अबाउट अदर एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री। अब देखो, शुरुआत में व्हाट वी डिस्कस्ड कि व्हाट डू वी नीड टू स्टडी हिस्ट्री, है ना, तो काफी जनरल लग रहा था आपको, आपको रटना हेल्प कर रहा है। नाउ इट बिकम वेरी इजी फॉर मी टू टेल यू कि हाँ ये पढ़ना है, आप इसके अंदर क्या पढ़ना है आप जानते हो, राइट। तो कोई भी टाइम पीरियड है, in a particular time period from ancient or medieval, what bare minimum political, social, economic history you are supposed to read, understand, वो मैं आपको स्टडी मटेरियल के फॉर्म में दूंगा। Let us not worry about that right now. So as about ancient time, medieval history, right? Modern history में आपको सब कुछ पढ़ना है, right? जैसे कि मैंने अभी कहा, modern history can be divided into two parts, that is composite group and ground group, right? Again, Indian national movement है इसका अलग से मेंशन किया हुआ है, that is from 1885 to 1947. अलग से मेंशन किया, that is why we interpret that there is special emphasis, right? Okay. And then the post independence history of India, this may overlap with polity, economy, say for example society के जो पढ़ते हो आप, example देता हूँ मैं आपको इसके लिए। Reorganization of state is very much part of post independence history, right? उसमें क्या आता है, linguistic reorganization of state, right? पंडित श्री रामचंद्र पास तक गए, उसके बाद आंध्र प्रदेश बना, पता है आपको। और जब आंध्र प्रदेश बना था तो बाकी लोग भी अपने अपने लैंग्वेज के बेस पे स्टेट की डिमांड करने लगे, अलग अलग स्टेट बने। या पॉलिटिक्स में पढ़ते हो भाई, या फिर अगर आप ये बोलो कि इंडिया में प्लानिंग कमीशन था पहले, आज नीति आयोग है, राइट। सो एज background to Indian economics, you study Indian economic development, which is NCR, इंस्टाडी को, उसमें अलग अलग प्लानिंग कमीशन की जो प्लान्स थे उसको आप पढ़ते हो, कितना टारगेट रखा गया था, कितना अचीव हुआ, राइट। तो वो इकोनॉमिक पढ़ते हो आप पोस्ट इंडिपेंडेंस का हिस्सा में। या फिर एक और एग्जांपल इकोनॉमी का, टॉक अबाउट ग्रीन रिवॉल्यूशन। एग्रीकल्चर वाज एन इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन फॉर अस। ग्रीन रिवॉल्यूशन ने हमको सेल्फ सफिशिएंट बना दिया फूड ग्रेन्स, तो आप इकोनॉमिक पढ़ते हो, एग्रीकल्चर मूवमेंट, राइट। या फिर कोई एक मूवमेंट है, चिपको मूवमेंट, आपको सोशलिज्म में एनवायरनमेंट पढ़ते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का वो ओवरलैप होता है, तो उसका अलग बहुत बड़ा बर्डन नहीं है, पीपल कंसिडर की बहुत बड़ा बर्डन, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। हाँ, इसमें एक और भी है, फॉरेन पॉलिसी, पर्टिकुलरली नियर में फॉरेन पॉलिसी, राइट। तो वो आप आईआर में पढ़ते हो, गेटिंग दिस। आई विल बी डिस्कसिंग दोस थिंग्स हियर एज वेल, बट दैट इज कवर्ड बाय द सब्जेक्ट्स। So this is the syllabus of preliminary examination. Okay. Now, main examination का syllabus. As we know, history कहाँ पे है? GS papers 1 में। और मैंने कहा आपको इसके दो components है broadly, Indian history and world history. तो ये जो 5 लाइन का syllabus है, उसमें के first 4 lines. This is Indian history, right? और ये क्या है? World history, only modern world history. Yeah. Look at the first time. क्या बोला यहाँ पे? Indian culture. पहले यही उठा था. Art forms, literature, architecture. बस language ऐड किया. While discussing cultural aspect of history, right? और ये मैं बात कर चुका हूँ कि art forms कौन से क्या पढ़ना पड़ता है, right? And then literature की दो पार्ट में मैंने बताया, religious and secular. And architecture उसमें से बहुत सारे चीजें हैं, you talk about it gradually. So this is क्या बोला गया है, Indian culture from, तो कल्चर का एस्पेक्ट एंशिएंट टू मॉडर्न सभी का पढ़ना, क्लियर, राइट। बाकी एस्पेक्ट कौन से बचे? अरे क्या बोला है, क्या पढ़ना है आपको एंशिएंट टू मॉडर्न? कल्चर इतना बोला है क्या पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल एस्पेक्ट पढ़ना है? नहीं, राइट, है ना। आगे सीधा लाइन शुरू होता है मॉडर्न हिस्ट्री का। इसका मतलब क्या हुआ, एंशिएंट मिडियल के बाकी एस्पेक्ट आपको पढ़ने हैं, बट विद स्पेशल फोकस ऑन, उसका रीजन मैं आपको समझा, ठीक है। वो तो पता है पॉलिटिकल एस्पेक्ट, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल,
ये फोकस है मेंस में क्लियरली एशियन फिडेबिलिटी है, राइट। लेकिन किसी भी समाज का कल्चर उस समाज के बाकी एस्पेक्ट से अलग नहीं होता, और किसी भी समाज में बाकी एस्पेक्ट कल्चर को इंपैक्ट करते हैं। देयर इज नो सेग्रीगेशन, है ना। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है। अगर कल्चर की बात कर रहे हो आप, ठीक है, आइडिया ऑफ धम्म ऑफ अशोक या फिर आइडिया ऑफ दीन इनायत ऑफ अकबर, ये कल्चर का भी पार्ट है एक तरह से देखा जाए। कई सारे रिलीजन का इन्फ्लुएंस है उनके ऊपर, बट आपको समझना पड़ेगा कि वो उनके स्टेट का, उनके एम्पायर का कोड ऑफ कंडक्ट था, तो उसको क्लियरली पॉलिटिकल और सोशल डायमेंशन है, वो समाज से एक तरह बनाना चाहते थे। तो मैं आपको या फिर टेम्पल आर्किटेक्चर इज पार्ट ऑफ कल्चर, राइट। बट आपको पता है क्या, टेम्पल को पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक तीनों डायमेंशन थे। कई सारे राजाओं के खुद के टेम्पल्स थे, एंड दोज वर सिंबल्स ऑफ दिस सॉवरेनिटी एंड पावर, बिकॉज़ राजाओं के राज्याभिषेक कहां होते थे? टेम्पल्स में, उनके अपने टेम्पल में, एंड टेम्पल्स वर फैबुलसली रिच, दे स्टिल आर। Am I right? सबसे रिच टेम्पल कौन सा इंडिया का? बड़ा। दूसरा सबसे जो रिच इंसान है वो कौन है इंडिया में? मुकेश अंबानी। दूसरा ऐसे हो गया, तो रिचनेस, राइट, वो तो है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेम्पल्स ने कास्ट सिस्टम को साइंटिफाई किया, तो एक सोशल रोल भी प्ले किया है टेम्पल में, राइट। एंड नो वंडर टेम्पल्स वर टारगेटेड। पहले वॉर का मकसद क्या होता था? लूट, उसको बोलते हैं वॉर बूटी। एक टर्म है हिस्ट्री में, वॉर बूटी। फायदे, है ना, एम्पायर चलाने के लिए आपको जो रिसोर्सेज चाहिए वो मिल जाएगा आपको वॉर जीतने के बाद। तो वॉर्स में वेज टू गेट वॉर बूटी एंड न्यू टेरिटरी, जिससे आपको रिसोर्स मिलेंगे। तो अगर टेरिटरी नहीं मिल रहा है तो लूट करके निकल जाओ। और सबसे ज्यादा पैसा किधर है? आपको लगता है कि वो सब धार्मिक युद्ध है, ऐसा नहीं है। ये गलत प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है समाज में, उसकी विक्टिम आप मत बनो। मैं तो समझा, it is being said generally that Muslims destroyed temples, looted temples, ठीक है। मुस्लिम्स कब आए इंडिया में पॉलिटिकल पावर के तौर पे? फोर्थ इंडियन पार्ट में, गजनी एंड घोरी के इन्वेजन में। उनके पहले था सिंध का इन्वेजन, पर वहां पे कोई मेजर डिस्ट्रक्शन नहीं। लेकिन उनके पहले आपको पता है कि जस्ट उनके पहले राष्ट्रकूटास looted temples of Chulas, and Rashtrakuta destroyed temples of Kannauj, which was controlled by Gojapati Rajas. और राष्ट्रकूटों की जो राजधानी थी मान्यखेत नाम की, वो बहुत ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्ट की थी इन लोगों ने, उसमें कई सारे पैलेस टेम्पल्स भी थे। और ऐसे लिखा है उस समय की बुक्स में कि मान्यखेत इज सो ब्यूटीफुल इट कैन राइवल द ब्यूटी ऑफ सिटी ऑफ इंद्र। स्वर्ग से सुंदर इस तरह से, इन शॉर्ट। राष्ट्रकूटों का परमारस के साथ कॉन्फ्लिक्ट था, तो परमारस ने राष्ट्रकूटों की जो राजधानी थी मान्यखेत पूरी डिस्ट्रॉय की, जला डाली। आज मालखेड़ नाम का छोटा सा गांव है, वहां पे कुछ नहीं है। हमको कई बार बस ये बोला जाता है कि हाउ मुस्लिम शाहीज डिस्ट्रॉयड विजयनगर, जो कि ब्यूटीफुल सिटी। कभी ये नहीं बताया जाता कि परमारस हुए हिंदू एंड राष्ट्रकूटों में आल्सो हिंदू। ये पॉलिटिकल वॉर्स थे रे, ठीक है। और फिर भी मैं आपको एक बात बता दूं क्लियरली, क्योंकि हिस्ट्री में कुछ भी छुपा नहीं चाहिए, जो सामने हुआ वो लेके आना चाहिए, राइट। When destructions of temples happened because of Rashtrakutas, Parmaras, Gujapati Rajas, Cholas, all of that, उसमें purely the objective was to insult the other king. उसका सिंपल है ना टेम्पल, मतलब उसको डिस्ट्रॉय करो, तो अपना खुद का टेम्पल भी संभालने इस तरह से हो गया ना, उसका अपमान हो गया। दूसरी बात ये थी उसका प्रेस्टीज खत्म कर, लूट, सेकंड थिंग, राइट। Nobody is denying when Islamic invaders destroyed temples, there was an angle of fanaticism, right? There was a communal angle. इसको कोई नहीं है। वैसा क्यों है? हर रिलीजन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम करप्ट होता है, बताया आपको। जब हिंदुइज्म प्योर फॉर्म में था वैदिक काल में, अभी कोई कास्ट सिस्टम नहीं था, बाद में कास्ट सिस्टम में करप्शन के तौर पे सामने आ गया। प्रॉफिट मोहम्मद ने कभी ये नहीं बोला था जाकर के सबका तोड़ दो। ये तो ऐसा है कि बाद में ये सिस्टम डेवलप हुआ कि किसी भी
इंसान की पूजा नहीं करनी चाहिए, प्रॉफिट मोहम्मद ने बोला था, पता है आपको? तो उसको बहुत लिटरली लिया गया, ठीक है, वो इस्लामिक इंसान ही नहीं करना चाहिए, दूसरा कर रहे तो मार दो उसको, ये क्या तरीका हो गया? एक करप्ट एलिमेंट आ गया इस्लाम में। तो एक कॉन्सेप्ट आ गया, शिकन नाम की मूर्ति बन जाए बोलते हैं, और उसको एक प्रेस्टीज देने लगे, इसलिए एज अ ग्रेट ऑफ ड्यूटी वो मूर्तियां तोड़ने लगे। और अगर आपको लग रहा है कि हिंदुओं की मूर्तियां तोड़ने आए, ऐसा नहीं है, आप प्रॉफिट मोहम्मद की मूर्ति बना के तोड़ देंगे, मूर्तियां नहीं बनाएंगे किसी की भी। इट इज दिस, आपको किसी भी मुगल एम्परर की मूर्ति नहीं मिलेगी, और ना ही किसी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान की, जबकि वो आसानी से अपनी मूर्तियां बना सकते थे। कनिष्क की मूर्ति मिलती है प्राचीन काल से, राजा की मूर्ति नहीं बना, किसी की भी मूर्ति नहीं बना। तो वो एक उसमें एक कम्युनल एंगल था, रिलीजियस एंगल था, नॉट डिनाइंग इट, बट मेजर फोकस वाज समझ आ रहा है आपको? तो जो हिस्ट्री है जैसा का जैसा बताया जाएगा, राइट, ऑब्जेक्टिव अकाउंट ऑफ हिस्ट्री, राइट, ओके। तो बताओ मुझे, जब मैं टेम्पल का डिस्कशन कर रहा था, आपको नहीं लगता पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक सारे डायमेंशन में लिटरेचर की बात कर, उसमें वैसा ही कंप्लीट अर्थशास्त्र इन्फ्लुएंस्ड मौर्यन पॉलिटिकल सिस्टम, जरूर है ना? और इसलिए कई बार यूपीएससी इन एस्पेक्ट्स के ऊपर भी सवाल पूछने, इनसे जुड़ा हुआ जो संगम साहित्य का मैंने एग्जांपल बताया is one case in point, right? Then modern Indian history में क्या क्या पढ़ना है आपको? यहाँ पे लिखा है यूपीएससी ने middle of 18th century, that is precisely the battle of Plassey, up to present में बोला है। Yes, वैसे present को पढ़ने की जरूरत नहीं, करंट अफेयर्स पे आ जाता है। Are you getting this? और हिस्टोरियंस की बात करो ना, तो वो रिसेंटली हैपेंड इवेंट्स के बारे में नहीं लिखते, लास्ट 50 इयर्स के इवेंट्स वो नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? बिकॉज लास्ट 30-40 इयर्स में जो डिसीजन लिए गए उसका इम्पैक्ट पता चलने में टाइम लगता है, इट टेक्स इट्स ओन टाइम, राइट? जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने जब 1991-92 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, उसका इम्पैक्ट आज पता चल रहा है कि इंडिया ने बिकम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी में। आर यू गेटिंग दिस? तो कोई मेजर डिसीजन है, उसका इम्पैक्ट पता चलने में टाइम लगता है, इसलिए हिस्टोरियंस अवॉइड राइटिंग अबाउट दिस थिंग्स। तो बताओ मुझे कितने साल हो गए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करके? 30 इयर्स। So historians tend to avoid writing about recent past. समझ में आ रहा है? ओके, वो करंट कहा जाता है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो इसमें क्या पढ़ना है? सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनैलिटीज एंड इशू। एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे कि स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट क्या है बताओ मुझे? सिग्निफिकेंट इवेंट है, राइट? हाँ, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, कौन है वो? जिसको आप एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स बोलते हो, लाल बाल और बिंदु घोष, लाल चंद्रपाल Aurobindo Ghosh. ये हो गए significant personality. Issues क्या है? That topic, Swadeshi itself is a big issue. British were here to loot us. How did they loot us? To trade. They made us buy their factory-made goods, and they destroyed our local industries, right? तो वो काउंटर करना है तो क्या करो? उनकी चीजें लेना बंद कर दो, अपनी चीजें खरीदना शुरू कर दो, वही स्वदेशी। स्वदेशी बाइकॉट वो हैंड इन हैंड। और एक्सट्रीमिस्ट जो फेस था इंडियन नेशनल मूवमेंट का, हाँ, उसमें 4 पॉइंट एजेंडा था, 4 पॉइंट एजेंडा। स्वदेशी, बाइकॉट, नेशनल एजुकेशन एंड स्वराज। समझ में आ रहा है क्या आपको? सो स्वदेशी itself is an important issue. कौन सा इशू है? इंडियन इकोनॉमी का इशू है, पॉवर्टी। हमारी पॉवर्टी क्यों है? ब्रिटिशों की पॉलिसीज की वजह से। हाउ टू रिड्यूस दैट पॉवर्टी? बाय बाइंग आवर ओन गुड्स सो दैट आवर मैन्युफैक्चरर्स गेट सम मनी, दे कम आउट ऑफ पॉवर्टी। और मैं आपको, तो व्हेन यू स्टडी समथिंग, यू स्टडी इन दिस मैथ। कोई दूसरा भी आप इशू ले लो, एजुकेशन का इशू। वेस्ट एजुकेशन की वजह से फायदा हुआ, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट लोगों को ये भी लग रहा था कि हम ना एक एजुकेशनल गुलाम बन रहे मेंटली है ना, तो नेशनल एजुकेशन शुरू करना जरूरी है। तो कई सारे अलग अलग हमारे अपने नेशनल स्कूल्स कॉलेजेस खोले गए एज पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। समझ में आपको? तो इश्यूज, तो हर चीज इस तरह से पढ़नी मॉडर्न हिस्ट्री में, जैसे कि आपको बताया गया सिलेबस में। देन फ्रीडम स्ट्रगल, इसको फिर अलग से लिखा है, मॉडर्न का हिस्सा है, फिर अलग से लिखा है, मतलब एम्फेसिस ज्यादा है। अब तक मेंस एग्जामिनेशन में एक्सेप्शन नहीं है। 2013 से सारे मेंस एग्जामिनेशन में ज्यादा सवाल मॉडर्न हिस्ट्री और उसमें फ्रीडम स्ट्रगल के होते हैं, एंड द लेस क्वेश्चंस ऑन एशियन एंड मिडिल। ये पैटर्न अब तक तो देखने को मिला है, लेकिन आप उसी को लेकर के मत बैठो। यूपीएससी हैज हैबिट ऑफ सरप्राइजिंग यू इन द एग्जामिनेशन, राइट?
सो फ्रीडम स्ट्रगल में क्या पड़ता है? वेरियस स्टेजेस, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। 3 स्टेजेस हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के, वो कौन से हैं? मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज है, गार्डियन फेज। और मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आपने ये नहीं सोचा सर गांधी फेज क्यों? आई डोंट लाइक गांधी। व्हाट यू लाइक इंपॉर्टेंट नहीं है, और आपका जो पर्सनल ओपिनियन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, और वैसे भी डिस्टर्ब होने वाला है क्लासरूम्स। मैं अभी ज्यादा बात नहीं करूंगा, अभी मैं आपको आपके मतलब की बात समझाता हूँ, बात में समझाऊंगा कि वो ऐसा क्यों है लेक्चर्स में। मतलब की बात ये है, यूपीएससी पूछता है उस तरह के सवाल। एक सवाल था, डिस्कस वेरियस अदर स्टैंड्स ड्यूरिंग गांधीयन फेज। आप आंसर इसका शुरू नहीं करोगे, यू हैव यूज्ड रॉन्ग वर्ड। If there are different stands, how can you call it Gandhian phase? अरे भाई, तुझे आंसर करना है यूपीएससी को, उसको सवाल नहीं पूछना है, तो एक्सेप्टेड। तो आपको एग्जाम पास करना है ना, बेसिक ऑब्जेक्टिव वो है। अभी तो इतना ही बता रहा हूँ, बाद में बात करते हैं कि गांधीयन फेज ही क्यों बोला है। उसमें कई सारे स्टैंड्स हैं। कौन से स्टैंड्स हैं? स्वराज पार्टी का स्टैंड, चित्तरंजन दास एंड बुद्धिराम, दास एंड बुद्धिराम। उसके बाद रिवोल्यूशनरीज का एक अलग इंपॉर्टेंट स्टैंड है, उसमें एचआरए एचएसआरए जो बना। सूर्य सेन का एक अलग अपना स्टैंड, राइट, अनुच्छेद समिति वन तक, राइट। देन विद इन दैट डेकेड you have social reformers like Velia, Ramaswamy Naik, Dr. B.R. Ambedkar himself, right? There were many women's organizations working for the problems of women at that time. There were organizations who were working for pigeons, workers, tribals. तो अलग अलग स्टैंड्स है उसमें, राइट। तो उसके ऊपर सवाल आया, तो अब ये जो अलग अलग स्टैंड्स है, कहाँ कहाँ पे क्या हुआ, ठीक है। मोपला रिबेलियन कहाँ हुआ? वो एक रीजन में, आसाम में एक स्ट्राइक हुआ था as part of non-cooperation movement, led by जेम्स सेनगुप्ता। तो जेम्स सेनगुप्ता आसाम में एक रीजन में वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री के कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उनका कंट्रीब्यूशन क्या है और वो कंट्रीब्यूटर कौन है? आर यू गेटिंग दिस? इस तरह से हमको पढ़ना है सिलेबस, राइट? ओके। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन की ऑर्गेनाइजेशन, इसकी बात मैं कर चुका हूं शॉर्ट में। उसमें क्या क्या है, इंडिया के अलग अलग पॉलिसीज, पॉलिटिकल सिस्टम कैसे बना, इंडिया का इंटरव्यू पॉलिसी कैसा है, राइट। इसकी इंपॉर्टेंट स्टेजेस क्या है, व्हाट इज प्रेसिडेंशियल कमीशन, व्हाट इज इंडियन कमीशन, इंडिया का फॉरेन पॉलिसी कैसा है, इंडिया का इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसा है, साइंस एंड टेक का पॉलिसी कैसा है। तो ये सारे सवाल इसमें आते हैं, राइट। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड ये अलग से डिस्कस होगा आपका, है ना। वो भी डिफाइन किया फ्रॉम 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, मतलब 1700 ऑनवर्ड्स, राइट। इंपॉर्टेंट इवेंट्स, पॉलिटिकल फिलॉसफीज, इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या आएगा आप ही बताओ मुझे। एनलाइटनमेंट, राइट, फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके बाद कॉलोनियलिज्म, उसके बाद colonialism and different wars, colonial wars बोलते हैं उसको, Austrian War of Succession, 7 Years War, Napoleonic Wars, right, है ना। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, उसका इम्पैक्ट, राइट। 20th सेंचुरी में वर्ल्ड वॉर 1, इंटर वॉर पीरियड, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है, वर्ल्ड वॉर 2, देन कोल्ड वॉर, एंड ऑफ द कोल्ड वॉर एंड पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड। तो ये कंटेंट है उसका, राइट। उसमें फिर क्या बोला है यहाँ पे, एक और आता है पॉलिटिकल फिलोसॉफीज, क्योंकि अभी जो मैंने बातें की ना उसमें पॉलिटिकल फिलोसॉफी का बहुत बड़ा इंपैक्ट है ना। पॉलिटिकल फिलोसॉफीज ने वर्ल्ड शेप किया, वर्ल्ड हैज बीन शेप्ड। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ और एक फिलोसॉफी कैपिटलिज्म नाम की, उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट था कॉलोनियलिज्म के ऊपर, राइट। इनफैक्ट लेनिन ने कॉलोनियलिज्म को सीधा सीधा कैपिटलिज्म से जोड़ा है, ठीक है। और ब्रिटेन कैपिटलिज्म, ब्रिटेन और यूएस कैपिटलिज्म की क्या है, पोस्टर बॉयज, दे वर द वन हु वर प्रमोटिंग कैपिटलिज्म अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट। उसको फिर काउंटर किया गया कम्युनिज्म की तरफ से, कार्ल मार्क्स ब्रॉट दैट आइडियोलॉजी। एंड पहला जो कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ, रशियन रिवॉल्यूशन, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड, 1917 में, इट वाज अ मेजर इवेंट इन 20th सेंचुरी, उसको भी आप पढ़ोगे। फिर उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ग्रेट डिप्रेशन आया, उसके बाद फिर राइज ऑफ फैसिज्म है, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ। आई एम गेटिंग दिस। सोशलिज्म के अलग अलग वेरिएंट्स बने, सो कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, फैसिज्म, कम्युनिज्म, ये अलग अलग फिलोसॉफीज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है
Cold War was clearly an ideological struggle, apart from being a strategic struggle, right? So US का capitalism versus Soviet का communism, उसका क्या impact हुआ दुनिया के ऊपर, right? तो political philosophy को आप पढ़ने, ठीक है? Okay. तो ये मेंस का syllabus है. Now we go to the sample questions. ठीक है? Just to get an idea, इस तरह के सवाल पूछे गए. पहले प्रीलिम के उसके बाद मेंस के. उसमें से कुछ एक मैं डिस्कस करता हूँ. See, I have picked up 2 questions each from ancient, medieval and modern. 2019 का है, ठीक है? 2022 का भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. उसका मॉडल, उसके आंसर की का विद एक्सप्लेनेशन एक पीडीएफ बनाया हमने, वो भी है, बट लेकिन विल फोकस ऑन व्हाट द कंटेंट फाउंड इन स्लाइड राइट नाउ. मैंने 2 सवाल पिक किया है हर सेक्शन से, ठीक है? नंबर में बच जाओ 97 99, बिकॉज़ बात ये है वो शफल होता है. आप एग्जामिनेशन में हॉल में एग्जामिनेशन के तो इस लाइन को मिलेगा सीरीज ए, इनको बी, इनको सी, इनको डी, कोई स्कोप नहीं आपके पास. अरे 97 का आंसर बता रहा आपका 97, उसका 37 है. There is no scope for all these things. और आपके उधर की इंसान पूछ नहीं सकते आप आवाज चढ़ा करके, इन्विजिलेटर सामने खड़ा है, और ऐसा भी कर सकते ये बता वो तो मूवमेंट पीछे घूमेगा, इन्विजिलेटर देखिए क्या चल रहा है. आत्मनिर्भर भारत चाहिए. UPSC has different ways to get you clean in the methodology, right? So we did a sorry, those who are online. आपका कुछ कमेंट है क्या इधर? लेट मी चेक. ये थोड़ा सा भी लाइव भी चल रहा है ना, तो मुझे इधर लिखना पड़ता है. बट दोज ऑफ यू हु आर ऑनलाइन, आई मस्ट टेल यू दैट व्हेन आई टीच, तो इसके ऊपर मेरा फोकस रहेगा. कहाँ पे क्या चल रहा है, ये तो ठीक है लाइव भी चल रहा है, इसमें थोड़ा सा, बट देयर वोंट बी एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. आर्टिकल 40 आपके की प्रेमली कर लिया. तो ये 2 सवाल पिक किए मैंने. आप यहाँ पे क्या आंसर नहीं करना है, हमने आंसर पढ़ा नहीं तो क्या आंसर करेंगे, राइट? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस क्या होता है, मैंने समझा. सबसे पहले देखो कि सवाल किसके ऊपर पूछा गया, कौन से सिलेबस के हिस्से के ऊपर सवाल पूछा गया. हाँ, इंस्टीट्यूट में, हाँ हड़प्पन, हाँ ठीक है, प्रोटेस्ट बोल दिया उसको, ये आपका टॉपिक है हड़प्पन. लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन का कौन सा एस्पेक्ट है? साइड पूछा है. सिलेबस में कहीं नहीं बोला साइड पूछेंगे, है ना, पूछ लिया. और ऐसा नहीं कि पहली बार किया है, जो 2022 का प्रीलिम हुआ, ठीक है, हाँ, उसमें भी सवाल, अभी 2023 के सवाल में पूछा है. अभी रिसेंटली प्रीलिम हुआ 28 को, राइट? उसमें ये पूछा है साउथ इंडिया में अलग अलग पोर्ट्स है, तो पोर्ट्स के नाम भी बोलते हैं कैसे साइड से बताओ. पोर्ट साइट है क्या, आर्कियोलॉजिकल साइट है क्या है, एक्सकवेशन हुआ है क्या हुआ. सो साइट्स के ऊपर सवाल आएंगे. हमने क्या बोलना है खुद को, देयर विल बी क्वेश्चंस ऑन साइट्स. क्लियर? एक पॉइंट मिल गया. सिलेबस क्या रहा है एक्स्ट्रा, राइट? असर बगैर चले ऐसे देखना है उसको, राइट? हां, ऐसे नहीं करना है कि कौन सा टॉपिक में कितने सवाल आए. मार्केटिंग गिमिक है वो. कुछ लोग आपको ऐसे एक प्रेजेंटेशन बना करके लेके आए 5-4. कितने बहुत सुंदर दिखता है आपने, अलग अलग कलर दे करके उसके अंदर परसेंटेज. फिर क्या बोलेगी, देखो क्वालिटी के ऊपर कितने सवाल है. अरे बेटा नेक्स्ट ईयर चेंज होने वाला है. दिस इज मीनिंगलेस. ये स्टैटिस्टिक्स है, एनालिसिस नहीं. डिफरेंस होता है इन चीजों. यूआईक्यू एनालिसिस क्या होता है, हम जो कर रहे हैं उससे आपको क्लू मिलना चाहिए पढ़ना कैसे है. ये तो हर बार चेंज होगा. लास्ट ईयर 18 सवाल थे हिस्ट्री के ऊपर, जिससे 12, तो पहले इधर था बेचारा, इसके इधर आ गया. वो तो बिल ढूंढता रहेगा आपका. मेक्स नो सेंस. रबिश, आई कॉल इट रबिश. आप ये देखो कि आपको इनपुट क्या मिल रहा है उससे, ठीक है? जो चीज हर बार बदल रही है, इट मेक्स नो सेंस, राइट? वो यूपीएससी के हाथ में कितने सवाल किस टॉपिक पे ऊपर पूछना है. आप वो काम करो जो आपके हाथ में है. You do things which you can control and not the
कमीशन है, राइट? तो ये सवाल हो गया। दूसरा, अब देखो 3 स्टेटमेंट्स हैं, डेडिकेशन ऑफ बुद्धिज्म, ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बुद्धिज्म को, इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स। और पूछा क्या गया इसमें से कौन से फीचर्स महायान बुद्धिज्म के हैं। मींस देखो कहीं पे एक्सप्लिसिटली नहीं बोला कि आपको रिलीजन पढ़ना है, बट वी विल बी डिस्कसिंग ऑल द इंपॉर्टेंट रिलीजन इन इंडिया। वी विल टॉक अबाउट हिंदुइज्म राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, different developments. Same thing about Buddhism, Jainism, Christianity came in India in first century AD, right? Then Islam, right? Sikhism. तो इसी के भी फिलोसफी के ऊपर आपको सवाल आ सकते हैं। तो दिस इज ए क्वेश्चन कि रिलीजन का फिलोसफी क्या है, वो भी आपको पता होना चाहिए, राइट? वी विल बी गिविंग इनफ टाइम फॉर ऑल दिस थिंग्स, राइट? ये सारे के सारे महान बुद्धिज्म के फीचर्स है, वो बात अलग है। आंसर की तरफ मत जाओ, डोंट गो टू द आंसर्स। सो देयर आर कपल ऑफ एग्जांपल्स फ्रॉम एंशिएंट हिस्ट्री, राइट? Medieval history examples, right? Who among following Mughal emperors, right, shifted emphasis from illustrated manuscripts to album and individual portrait? वैसे सवाल है पेंटिंग के ऊपर, लेकिन ऑप्शंस है एम्परर्स के पॉलिटिकल, क्योंकि मुगल पेंटिंग जो हुआ ना उसका जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर अलग अलग एम्प्रेस का अपना खुद का इम्प्रिंट था, ठीक है? अकबर के स्टूडियोज पे जहां पे उसने मतलब फैक्ट्री बनाया था उसने, ठीक है? बता अकबर इलिटरेट था, he could not read, बट उसको इंटरेस्ट बहुत चीजों पे था, वो डिस्कस करता था लोगों से, चीजों को पता करने की कोशिश करता था, राइट? तो उसने बोला कि महाभारत क्या है, मुझे पर्शियन में इसको ट्रांसलेट करके दो। तो उसको ट्रांसलेट किया गया रज बनाना, तो पर्शियन में नहीं पढ़ सकता था, बोलता है पिक्चर बना, उसके पेंटिंग बना। आपने बचपन में पढ़े होंगे ना बुक्स, हाँ हाँ वो ये कैरेक्टर बोल रहा है कुछ ऐसे आता है उसमें, पेंटिंग के फॉर्म में पूरा महाभारत उसने पेंट करवाया। इसको बोलते हैं बुक्स को पेंटिंग के फॉर्म में दिखाना, गेटिंग दिस? तो वो थीम है अकबर के समय का, राइट? जहांगीर के अलग इंटरेस्ट है, वो तो ये नेचर पेंट की तरफ, हाँ ठीक है, और मुझे पोर्ट्रेट के फॉर्म में चाहिए तो, हाँ? और उसको फिर एल्बम बना के दो मुझे, बुराका बोलते थे उसको, इट वाज कॉल्ड बुराका। सो द आंसर इज जहांगीर, बट अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग आस्क्ड। कल्चर से जुड़ा हुआ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एस्पेक्ट आ सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव, राइट? लुक एट दिस वन, ये सीधा सीधा एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन है। एडमिनिस्ट्रेटिव आपको डिफरेंस पूछा है जहांगीरदार है जमींदार के बीच में। जहांगीर तक उस एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन है, ठीक है? आपको जहांगीरी मतलब उस एरिया का पूरा जो जिम्मा आपके ऊपर है। जमींदार का मेजर काम था लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना। ये बात अलग है कि आगे जाकर के उसके ऊपर और जिम्मेदारी दी गई, बट द बेसिक डिफरेंस इज जमींदार इज प्योरली रेंट कलेक्टिंग एजेंट, जो कि एग्रीकल्चर का रेंट कलेक्ट करेगा, राइट? एंड पूरा लॉ एंड ऑर्डर एवरीथिंग इज टू बी गिवन टू जहांगीर। ये इसका बेसिक डिफरेंस है, यू टॉक मोर अबाउट दैट। तो उस डिफरेंस को डिस्क्राइब करने वाली जो सेंटेंस है उसमें से कौन सा सही आपको ये बता दें। एनालिसिस ये होता है, आंसर मत करो, सवाल किस चीज के ऊपर आ रहा है, किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, कौन से कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ने हैं, राइट? तो वो आपको बताएगा कि अप्रोच क्या होना चाहिए आपका व्हाइल स्टडीइंग पर्टिकुलर सब्जेक्ट। मॉडर्न के दो एग्जांपल्स, राइट? कपल ऑफ एग्जांपल्स ऑफ मॉडर्न। तो यहाँ पे क्या दिया है, अब मैं फास्ट जाता हूँ थोड़ा सा। मूवमेंट, ऑर्गेनाइजेशन और लीडर, वो जो है सिग्निफिकेंट पर्सनालिटीज, हाँ उनका कंट्रीब्यूटर, उसके ऊपर सवाल, राइट? यहाँ पे क्या है, स्वदेशी मूवमेंट के ऊपर दो स्टेटमेंट्स है, क्या है ये बताओ। तो मूवमेंट सिग्निफिकेंट इवेंट जो हम देख रहे हैं, राइट? सो इस तरह के सवाल आते हैं आपको, और जैसे कि मैंने कहा कि इशू क्लियर है। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, तो एजुकेशन का इशू जो है उसको डील करने की कोशिश की थी स्वदेशी मूवमेंट ने। That movement was not merely struggle against British rule, it was also struggle against the kind of education that they were imparting. So it talked about giving our own education. फिर एक काउंसिल बनाया था, तो मैंने क्या आपको वैसे दोनों स्टेटमेंट सही है, बट यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड नेचर क्या है सवाल, किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। ये हो गया सैंपल क्वेश्चन फ्रॉम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। लेट अस क्विकली गो थ्रू एट लीस्ट a few questions from basic examination. Okay, ये 2019 का है, और मैं आपको 2022 का जो मेन सवाल लेटेस्ट वन उसके भी क्वेश्चन दिखाऊंगा। 2023 का अभी होना है, इन द मंथ ऑफ सितंबर दैट एग्जामिनेशन विल हैपन, विल गेट मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑन हिस्ट्री। तो सबसे पहली बात तो आपने ये देखना है यहाँ पे, द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड लुक एट इज
the keywords highlight, examine, right? Elucidate, elaborate, assess. तो हिस्ट्री जो लोग ऐसा समझते हैं कि इट्स ऑल अबाउट डिस्क्रिप्शन, याद रखना है, नैरेट करना है स्टोरी, यू आर रॉन्ग. This needs to be examined, elaborated, assessed, evaluated, discussed, understood. Let us take two very interesting examples. पहला क्वेश्चन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बुक में मिलेगा आपको सीधा कि ये एलिमेंट्स हैं जो गांधार आर्ट में लिखते हैं, जो those can be called as translation become acting elements. ये जो है ना, examining the linkages between 19th century Indian Renaissance and emergence of national identity. ठीक है, ज्यादा नहीं बोलूंगा बट आपको मैं एक आइडिया देता हूँ. इंडियन रिनेसेंस का मतलब है सोशल रिफॉर्म्स. ठीक है, उसका मतलब सोशल रिफॉर्म्स ही क्यों है, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स. या ऐसा ये मतलब मैं क्यों निकाल रहा हूँ उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे एज पार्ट ऑफ आवर क्लासरूम डिस्कशन, राइट, है ना. तो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स ऑफ इंडिया वो ब्रॉडली दो कैटेगरी के थे, रिफॉर्मिस्ट एंड रिवाइवलिस्ट. ठीक है, इसका भी अंतर क्या है बाद में समझेंगे. आई जस्ट नीड टू मेक दिस क्लियर, राइट. तो जो रिफॉर्मिस्ट टाइप ऑफ सोशल मूवमेंट्स थे उसमें राजा राम मोहन रॉय का जो ब्रह्मो समाज हुआ है एग्जांपल के तौर पे, और जो रिवाइवलिस्ट है उसमें स्वामी दयानंद सरस्वती का आर्य समाज, राइट. आपको मैं सीधा बता दूं कि राम मोहन रॉय का जो थिंकिंग था उसका एक इन्फ्लुएंस जो मॉडरेट लीडर थे हमारे, गोपाल कृष्ण गोखले, एमजी रानडे, राइट, दादाभाई नौरोजी, दिनशो वाचा, फिरोज शाह मेहता, जो मॉडरेट्स कहलाते थे. तो मॉडरेट लोगों ने जो एक आइडिया ऑफ नेशनलिज्म बनाया था, एक नेशनल आइडेंटिटी बनाने की कोशिश की थी, उसके ऊपर रॉय की थिंकिंग का इन्फ्लुएंस है. सो रॉय के सोशल रिफॉर्म्स को कनेक्ट आप लगा सकते हो मॉडरेट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल आइडेंटिटी. एंड दैट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल आइडेंटिटी बाय एक्सट्रीमिस्ट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय रिवाइवलिज्म. उसके ऊपर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वामी दयानंद सरस्वती और विवेकानंद, इनका इन्फ्लुएंस था. आर यू गेटिंग दिस? तो अलग अलग आइडियाज बने. गांधी ने जो आइडिया था उसके ऊपर काफी हद तक महात्मा फुले का थिंकिंग का इन्फ्लुएंस था. बाकी और भी है, लेकिन आपको क्या पूछा गया, इंडियन रिनेसेंस को जोड़ो उसके साथ. गेटिंग दिस, है ना. और भी चीज है, हम बात करेंगे उसके बारे में. तो आपको ऐसा नहीं कि ये भी पढ़ लिया, भी पढ़ लिया, लेकिन दोनों का रिलेशन क्या है वो बुक में सीधा सीधा नहीं होता है. आपको उसको डिस्कस करना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है, राइट. ओके, ये सवाल है, असेस द रोल ऑफ ब्रिटिश इंपीरियल पावर इन कॉम्प्लिकेटिंग, क्या बोला गया, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर. ठीक है, इन 1940s, और उसको असेस करने के लिए बोला. असेस का मतलब क्या होता है पता क्या होता है, ब्रिटिशों ने टू व्हाट एक्सटेंट दे कॉम्प्लिकेटेड द प्रोसेस. कॉम्प्लिकेट कितना हुआ ये पूछा गया, तो उसका असेसमेंट देना है आपको. तो वो एग्जैक्टली आपके आंसर में आना चाहिए, राइट. सो ट्रांसफर ऑफ पावर क्यों बोला आपने, ऐसे क्यों नहीं बोला, वी वॉन आवर इंडिपेंडेंस. टेक्निकली स्पीकिंग इट वाज ट्रांसफर ऑफ पावर. क्यों? We got the independence by passing the law act in the British Parliament. Yes, we did win our independence. There is no doubt about that. We'll talk more about that later on. But the procedure just followed was transfer of power. समझ में आ रहा है आपको? ट्रांसफर ऑफ पावर ये हुआ, इसके पीछे एक बैकग्राउंड है, राइट. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो हमने जो डिमांड किया, वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, तो सीरियस डिस्कशन शुरू हुआ हमारे बीच में, हमारे लीडर्स के बीच में और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में. जब तक चर्चिल था, he was not at all serious about giving independence to India. विंस्टन चर्चिल जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर उस समय, वॉर के दौरान, राइट, वॉर खत्म होने के बाद क्लेमेंट एटली बिकेम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर. ही वाज इन फेवर ऑफ गिविंग इंडिपेंडेंस टू इंडिया. तो ट्रांसफर ऑफ पावर के दो हिस्से हैं, एक चर्चिल का टाइम, एक दूसरा एटली का टाइम, राइट. चर्चिल के समय वो पॉलिसी अडॉप्ट करके बैठे, कैरेट पॉलिसी का जो लिखा हो कुछ दो मतलब. सो क्रिप्स प्रपोजल वाज द कैरेट पॉलिसी. उसके पहले ऑगस्ट ऑफर वाज अ कैरेट पॉलिसी. ऑगस्ट ऑफर फिर प्रपोजल, कैबिनेट डेलीगेशन आगे जा करके, वेवेल प्लान, और हमारे अपने कुछ है जैसे कि सीआर फॉर्मूला, राइट, सीआर को प्रोजेक्ट का फॉर्मूला, सीआर फॉर्मूला, देसाई दिया का पैक्ट, राइट. देन अल्टीमेटली कम्स माउंटबैटन प्लान. तो ये जो सारे अलग अलग एफर्ट्स हुए हैं टू रिजॉल्व कपल ऑफ डेडलॉक्स. चर्चिल जब तक था डेडलॉक ये था कि वी वांट इंडिपेंडेंस, चर्चिल देने को तैयार. तो चर्चिल ने कॉम्प्लिकेट किया उसको, राइट, इसमें कोई डाउट नहीं है, वहां पे ब्रिटिश का रिस्पॉन्सिबल. लेकिन दूसरा जो एक डेडलॉक है वो है बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग. मुस्लिम लीग वांटेड टू नेशंस, कांग्रेस बोल रहा है कि नहीं एक ही नेशन रहेगा. पता है आपको ये? ओके.
आपकी जब वो नहीं आना चाहिए, नहीं वो सिर्फ कांग्रेस ने तो पार्टीशन किया था। अरे बेटा सरदार पटेल भी कांग्रेस में रहे, मैं समझाता हूँ बाद में अच्छे से टोटल को। तो डोंट फॉल इन प्रे टू प्रोपेगेंडा, डोंट फॉल इन प्रे टू द अनऑथेंटिक नॉलेज, इंफॉर्मेशन नॉट द नॉलेज क्रिएटेड ऑन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म। मैं आपको समझा रहा हूँ। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन, श्याम प्रसाद मुखर्जी जो कि फाउंडर थे भारतीय जनसंघ के, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बना, वो भी कांग्रेस में थे। नेहरू की इंडियन कैबिनेट थे, वो तो 1950 में उन्होंने अलग पार्टी बनाई। इंडिया पता नहीं होता, बोलते बहुत है उसके ऊपर। कांग्रेस किसी एक का प्रॉपर्टी नहीं जा रहे, मैं आज कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। तो टूट के पता नहीं कौन सा हिस्सा बचा बेटा, स्ट्रगल कांग्रेस अलग है, उसको ऐसे मत जोड़ो आप, आज की पॉलिटिकल पार्टी के साथ मत जोड़ो आप। कांग्रेस के लोग क्या बोल रहे हैं आज और बीजेपी के लोग क्या बोल रहे हैं, वो तो आपको वोट पाने के लिए आपको एक तरह से मिसलीड करते हैं, उसको छोड़ो। आप किसकी की तरह बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस वाज saying कि नो पार्टीशन, लोग पार्टीशन की बात कर रहे थे मुस्लिम लीग, टू नेशन थ्योरी, चाइना वाज नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग एट ऑल, राइट। तो ये कॉम्प्लिकेशन है। तो उस कॉम्प्लिकेशन में ब्रिटेन ने क्या रोल प्ले किया, इतने कॉम्प्लिकेटेड, तो उसका एक असेसमेंट देना किस एक्सटेंट तक, उसको थरो डिस्कशन की जरूरत है। समझ में आ रहा है क्या आपको? तो ऐसा नहीं कि स्टोरी बता दिया स्टोरी लिखो। लेकिन एक पूछा आपको करता वाले कुछ लिखना, इट इज एनालिसिस, in-depth analysis that we are supposed to do here, right? इसीलिए आपको डिस्कशन पे ऐसे होंगे, right? 22 questions there, you can see that. Again, how do you explain medieval Indian temple structures? बोला हमने कैसे विचार, how do you explain medieval Indian temple structure बोला है, represent social life, again same thing, सवाल कल्चर के ऊपर है, किससे जुड़ा हुआ है? मैंने कहा ना, टेम्पल साइंटिफिक का सिस्टम और भी बहुत सारी चीजें। एग्जांपल के तौर पे टेम्पल प्लेड ए डेफिनेट रोल इन शेपिंग सोसाइटी, तो आपको बता रहे हैं स्ट्रक्चर में कैसे देखने को मिलता है, राइट। देन व्हाई डिड आर्मीज ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मोस्टली कंप्राइजिंग ऑफ इंडियन सोल्जर्स विन कंसिस्टेंटली अगेंस्ट द मोर न्यूमरस बेटर इक्विप्ड आर्मीज ऑफ देन इंडियन रूलर्स। कोई भी एग्जांपल ले लो आप, बैटल ऑफ बक्सर का एग्जांपल ले लो, 50,000 का फोर्स था, मुगल एम्परर नवाब ऑफ अवध का, डिफरेंट बाय ए आर्मी ऑफ 7 to 8,000 ब्रिटिशों का। कार्नेटिक वॉर में नवाब का फोर्स आ गया 50,000 का, 7,000 के फोर्स डिफीट किया। वो भी कई सारे रीजंस है। द ब्रिटिश आर्मी वाज क्वाइट डिसिप्लिन्ड वन, राइट, दे हैड बेटर मॉडर्न वेपन्स, राइट, दे हैड स्ट्रेटजीज इन प्लेस, दे हैड गुड लीडर्स, they knew about Indian political system and their armies thoroughly, espionage spy system, right? तो ये सारी बातें इनको फायदे क्यों होती? तो एनालिसिस है ये, कोई इवेंट डिस्क्राइब करने के लिए नहीं बोला, राइट? ओके, यू कैन गो ऑन टॉकिंग अबाउट दिस। व्हाई वाज दिस अदर स्पॉट इन फेमिनिस्ट इन कम्युनिटी सिंस मिड 18th सेंचुरी? इसके आपको ब्रिटिश पॉलिसी पढ़ने पड़ेंगे, राइट। वर्ल्ड हिस्ट्री में किस तरह से उस चीज को डील किया, लैंड रेवेन्यू, राइट, कौन बोले इसका परमानेंट सेटलमेंट क्या है, रैत वाली क्या था, बाहर वाली क्या था, इन सभी का कॉमन डिनोमिनेटर, नाउ यू अंडरस्टैंड दैट, राइट। Common feature was very great state demand. Put things in perspective, statistically speaking, right? एक सिस्टम था, मेडिकल सिस्टम, जहाँ पे कल्टीवेटर है, क्षेत्रीय ग्राम कल्टीवेटर, उसमें जमींदार रेंट के लिए था, ठीक है। रेंट का एक हिस्सा जमींदार किंग को देना था, ठीक है। तो मुगल एम्पायर का अगर हम एग्जांपल ले लें, तो रेंट का, ठीक है, जमींदार 33% एट द मोस्ट देता था राजा को, तो उसके पास कितना बचा, 67%। और अगर लैंड फर्टाइल नहीं तो उन्हें डोली क्या करते, 75% में जमींदार, राजा कुछ जमींदार कुछ, फिजन भी ओके, राइट। अंग्रेज आए, उन्होंने कर दिया 89% ऑफ द रेंट, तो तुम लूटना था ना बस, और क्या काम, ठीक है। 89% द रेंट। अब जमींदार के पास कितना बचा, 11%। इसको खाली 75% मिल रहा था, 11% में खुश रहेगा क्या? लेकिन आप कुछ बोल भी नहीं सकते, ब्रिटिश पावरफुल है, लेकिन आप इसको तो लूट ही सकते हो ना। तो आज की बजाय क्या निकालो, सीगा। तो पीजेंट के पास कुछ बचा ही नहीं है। पहले क्या था, मुगल एम्पायर, राइट, फ्रॉम मॉडर्न एम्पायर टू मुगल एम्पायर, कभी मानसून नहीं आया, कभी भी नहीं आया, पहले मानसून हुआ, सूखा आया, ठीक है, लेकिन पिछले साल का प्रोडक्शन है।
आप उसके ऊपर जी सकते हो। अगर नहीं है तो गवर्नमेंट आपको फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ब्रिटिश में ये दोनों चीजें नहीं होनी थी। इतना लूटा कि प्रीवियस ईयर का कुछ बचा नहीं, और ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ हेल्प भी नहीं कर रहा है, लोग भूख से मरे। फेमिन तब होता है जब लोगों के ऊपर इम्पैक्ट होता है, सूखे से फेमिन नहीं होता इमीडिएटली, राइट? सो ब्रिटिश पॉलिसी वाज डायरेक्टली रिस्पांसिबल फॉर फ्रीक्वेंट फेमिन्स फ्रॉम मिड 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। फ्यू रीजंस फॉर दैट। तो एनालिटिकली पढ़ना पड़ेगा आपको, पॉलिसीज क्या थे, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, स्टैटिस्टिक्स क्या है, वो भी देना पड़ेगा, राइट? आपको बताइए 1770 का बंगाल फेमिन में 1/3 पॉपुलेशन डाइड। अरे नंबर छोड़ो, 1/3 ऑफ बंगाल पॉपुलेशन डाइड भूख से। दैट वाज द इम्पैक्ट ऑफ फेमिन, राइट? तो ये एनालिटिकली पढ़ना पड़ेगा। हाँ, बट सम आइडिया व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, राइट? ओके, स्टेट फॉर सिंपल क्वेश्चन नहीं है, ये कॉम्पिटिशन, ये कोई मतलब बीए का पेपर नहीं। नाउ few important things before we end this session. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कैसे करना है ताकि आपके सामने एक सिंगल पेपर हो जिससे आपको पूरा पता चले। 2030 की पीछे मत जाओ मेंस के पेपर के एनालिसिस के लिए, प्रीलिम के पेपर के एनालिसिस के लिए 2011 के पीछे मत जाओ। 2011 के पहले जो प्रीलिम के पेपर थे उसमें पहला पेपर होता था ऑप्शनल का प्रीलिम में, आज है तो क्यों जाओगे? और दूसरा पेपर होता है जीएस का, आज दूसरा पेपर सीसैट का है। 2013 के पहले जो मेंस थी उसपे आपको 2 ऑप्शन लेने पड़ते थे, आज एक ऑप्शन लेने के लोग हो रहे हैं, पहले 2 लेने पड़ते थे। एक चॉइस करते करते लोगों को 6 महीने निकल जाते, उधर 2 चॉइस करते। पहले जीएस की 2 पेपर थे, आप कितने हैं? ये बदलाव, इसके पीछे मत जाओ, आप इसके पीछे, है ना? यहां से आगे आप किसी भी सब्जेक्ट का आप ये कर सकते हैं, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, सोशियोलॉजी का, पॉलिटी का, आया का। आपने करना क्या है, बड़े सवाल को छोटा कर दो, ठीक है? ये संदर्भ साहित्य का सवाल काफी बड़ा मैं दिखाऊंगा आपको, उसको मैंने बस 3 कीवर्ड में लिखा है। एक है सवाल किसके ऊपर आया, संदर्भ साहित्य के ऊपर आया, संदर्भ लिटरेचर, राइट? तो वो लिखा मैंने यहाँ पे। एग्जैक्ट सवाल किस चीज के ऊपर है, सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर है। तीसरा टर्म है जो की टर्म है, कॉमन। दैट्स इट, मैं आपको सवाल लिखा है, ठीक है? क्वेश्चन यहाँ पे, हाँ, लुक एट द एंटायर क्वेश्चन। मतलब ऐसे लगता है कि ऐसे लिख रहे हैं लोग इधर बैठकर, देखो क्या लिखा है। हाँ, though not very useful from the point of view of connected political history of South India, certain literature portrays socio-economic conditions of its time with remarkable vividness। अलंकारिक भाषा, हमने सब हटाना है उसको, पूरा मसला निकाल दो। सवाल किस चीज के ऊपर है, संगम साहित्य के ऊपर। क्या पूछा है, किस फॉर्मेट में लिखना है, सो मेक इट क्रिस्प वन। तो आपके सामने एक सिंगल टेबल होगा, दैट वुड बी क्वाइट यूजफुल, राइट? और ये आप किसी भी सब्जेक्ट का कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इफ यू डू इट, आपको कॉन्फिडेंस होगा कि ऐसा सवाल है, मुझे ये पढ़ना है, और ये अभी करना है, बाद में नहीं। इनिशियल फ्यू डेज यू डू इट फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, कीप इट विद यू। आप सामने भी लगा सकते हो आपके स्टडी रूम में, राइट? हाँ, A4 साइज ले लो, उसमें फिर हो सकता है कि पहले 3 साल का फिर 3 साल का, या फिर बड़ा होता है वो ड्राइंग का जो वो भी ले सकते हो। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपको। आपको लगता है ये सब नहीं करना है, मुझे बस क्वेश्चन पेपर गो थ्रू करने, वो भी कर सकते हो। बट आपने ये देखना है कि किसके ऊपर सवाल आए थे, नेचर क्या है, कीवर्ड क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है, राइट? ओके, तो दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। अप्रोच की बात कर रहे थे हम, जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, दिस इज समरी ऑफ इट। आवर नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन आउटलाइन ऑफ इंडियन हिस्ट्री।
एक मिनट, आपको अभी जाने तो आपको 19 सवाल पूछे चाहिए, और इफ यू क्वालिफाई देन ओनली योर राइट। वहाँ पे करिकुलम था जैसे कि आज होता है, राइट, उसके एग्जाम थे, कॉन्वोकेशन था एक तरह से, इसको डिक्लेयर कर सकते दिस पर्सन इज मास्टर डन, बुक्स थे, उसके मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, लाइब्रेरी थी, गेट दिस, इट इज लाइक मॉडर्न हिस्ट्री, ये सभी लिखते हैं, पता है आपको। तो आपके आंसर में एक्स फैक्टर क्या होगा? एंड बाय द वे सो मिसिंग टाइगर, तक्षशिला वाज मोर लाइक रिलीजियस लर्निंग का सेंटर, रिलीजियस फिलॉसफी तो बुद्धिस्ट सेंटर। एक जो फैक्टर है वो अपनी ये भी लिखा है कि कई सारे मॉडर्न सब्जेक्ट यहाँ पे ज्यादा पढ़ना शुरू हुआ, या कब बोल सकते हो पता है? नालंदा तक्षशिला का टाइम पीरियड है, तक्षशिला वो कौन सा है? पोस्ट बेज में कहीं पे उसका शुरुआत है, मौर्यन पोस्ट मौर्यन तक उसका मेजर टाइम पीरियड यहाँ पे फिनिश हुआ, वहां पे लिखा है। लेकिन इनफैक्ट यहाँ से आके गुप्त पीरियड ऑनवर्ड्स शुरुआत है नालंदा की, और ये जो टाइम पीरियड है पोस्ट मॉडर्न गुप्त, यहाँ पे वो सारे लोग हैं, आर्यभट्ट, चरक, सुश्रुत एक्सेट्रा। तो मॉडर्न सब्जेक्ट पढ़ना यहाँ पे शुरू हुआ, जो कि आगे नालंदा में पढ़ना शुरू होता है। इफ यू नो द आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री यू कैन ऐड दैट टॉपिक, subjects like mathematics, geometry, algebra, blah, by people like Aryabhatta, Puram here, that came to be studied in Nalanda, which are like modern subjects. Medicine was studied in a systematic manner. पहले भी मेडिसिन पढ़ा गया था, लेकिन वो as part of religious philosophy, not as a independent discipline. That was done by Charaka and Shivaji. तो इसलिए भी वो आउटलाइन पता होना चाहिए। ये हम पढ़ चुके हैं। एंशिएंट पीरियड कैसे पढ़ोगे आप? फोकस ऑन cultural aspects with fairly good idea of political activity, social economic aspect. कोई इसमें बात कर रहा था तो उसका एग्जांपल नीचे लिखा पाएगा। एंड मॉडर्न हिस्ट्री में आपको सभी के ऊपर इक्वल इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सारे एस्पेक्ट्स में, राइट? एंड दैट इज हाउ पीपल स्टडी हियर, एंड यू गेट स्टडी मटेरियल अकॉर्डिंग। अब जो लास्ट पार्ट है हमारे पूरे सेक्शन का, दैट इज सोर्सेस। ठीक है, तो एक बात बता रहा हूं, प्लीज पे अटेंशन, बार-बार मत पूछना, क्योंकि एक बार समझ लो, बार-बार वही बात है, क्या करने साथ में कुछ लोग बैच खत्म होता है उसमें कौन सी कोर्स पढ़ो। I did somewhere back in the past once upon a time in 2018. Talk about sources, right? ठीक है, see old NCERT बुक पढ़ने आपने, because ये sequentially स्थिति आ रहे for a beginner, है ना? New NCERT थोड़ा difficult है, वो थीम बेस्ड है, वो जंप करेगा एक टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड। आपको पता नहीं सीक्वेंशियल, तो आपने शुरुआत कैसे करनी चाहिए? ओल्ड एनसीईआरटी, और वैसे भी एनसीईआरटी की बुक्स कम से कम 2 बार पढ़ने पड़े। तो वन रीडिंग ऑफ ओल्ड एनसीईआरटी, सेकंड रीडिंग ऑफ न्यू एनसीईआरटी। जब भी एनसीईआरटी की बात होती है आज की यूपीएससी मार्केट में, तमिलनाडु एनसीईआरटी की बात होती है, और इस पीरियड की बात तो और ज्यादा बातें होने लगी, क्योंकि कुछ एक सवाल साउथ इंडियन कल्चर पे आ रहा है, तो नॉर्थ इंडियन कल्चर पे आके क्या करोगे? महाराष्ट्र कल्चर पे आने के क्या बोलेंगे? महाराष्ट्र के कुछ पढ़ो, ऐसे नहीं होता है। यस, आई अंडरस्टैंड साउथ इंडिया का अपना डिस्टिंक्ट कल्चर है, इसलिए आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तमिलनाडु तो आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगी। आई एम नॉट डिनाइंग इट, यू कैन यूज तमिलनाडु एनसीईआरटी एज एडिशनल सोर्स, नॉट एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ द नेशनल एनसीईआरटी। आर यू क्लियर ऑन दिस? राइट, स्टैंडर्ड नेशनल बुक्स कौन से पढ़ते हैं? देखो यूपीएससी क्या बोले, मॉडर्न कहां शुरू होता है? कहां शुरू होता है? बेटा 18th सेंचुरी। विपिन चंद्र की दिक्कत यह है कि वो मार्क्सिस्ट स्टडी होने के कारण बोलते हैं कि 1850 से शुरू होता है, तो शुरू करते हैं 1857 से, तो 100 साल का इतिहास नहीं मिल रहा है बुक में। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप ग्रोवर पढ़ो, आप ग्रोवर फॉरेस्ट का बुक बाय ग्रोवर, डिक्लाइन ऑफ एम्पायर से लेकर के रिवोल्ट ऑफ 1857, उसके बाद ये पढ़ो कौन सा विपिन चंद्र, क्योंकि ग्रोवर की बुक में ना जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है बहुत स्केची दिया है, उसमें ज्यादा कंटेंट है नहीं which is required, आइडेंटिटी कंटेंट मिसिंग है उसमें काफी हद तक, जो कि आप सवाल सॉल्व नहीं कर पाओगे फिर। तो ये पढ़ना है, राइट? इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस बाय विपिन चंद्र फॉर पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब ये देख करके लोग इमीडिएटली बोलते हैं उसमें बहुत बड़े बुक बोलते हैं आप। दिक्कत ये है, आपको पोस्ट बड़ा चाहिए और बुक ऐसे नहीं होता है, फिर आप बोले उसको स्पेक्ट्रम का बचा नहीं आपने। ठीक है, देखो मुझे विपिन चंद्र ने पैसे नहीं दिए, मेरा बुक प्रमोट करो, वो बहुत बड़े आदमी हैं, हम बहुत छोटे हैं। हम कैसे डिसाइड करते हैं? मेरी बात मान लो, एक काम करो, स्पेक्ट्रम का बुक ले लो
ओपन बुक टेस्ट करना, जो सवाल आए टेस्ट में वो लिख करके लिखा, ओपन बुक टेस्ट। यूपीएससी गोइंग बियॉन्ड सर्टेन बुक्स, तो आपको कुछ ना कुछ एडिशनल पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब लोग बोलते हैं कितने साल का इतना कैसे पढ़ेंगे, है ना? ये आपका ये जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है ना, वो इसको एप्लीकेबल है, मैं जानता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा बुक है, एक आध दो सवाल आता है सर ये क्यों बता रहे, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि यू कैन स्किप दिस, देन यू शुड रिलाई ऑन क्लास स्टडी मटेरियल। फिर भी कंपटीशन है, आपको कहीं लगा कि क्लास स्टडी मटेरियल में कोई चीज मिसिंग है, तो सिलेक्टिवली रीड करो इसको। कैसे पढ़ोगे? उतना ही पार्ट जो कि ऐड करना है। अरे सॉल्व बोर्ड रेफरेंस बुक्स को लेकर के हमारा जो स्कोर है बढ़ाना और रैंक में ऊपर जाना, राइट? ठीक है। एंड देन कल्चर की दो बुक्स है, नीलम सिंह गार्डन, यस बनी, ठीक है। इसमें दिक्कत क्या पता है कि दोनों बुक का फॉर्मेट क्या है, ये आपको कल्चर पैकेट्स में देता है, एक स्ट्रक्चर का पैकेट फेंक दिया आपके ऊपर, या आर्किटेक्चर का फेंक दिया, अरे सर लिख लो किस काल में, उसका जुड़ा हुआ हिस्ट्री की तरह पॉलिटिकल सोशल की तरह। इसलिए टू सिंप्लीफाई द थिंग्स आई जनरली रेकमेंड, रिकमेंडेशन है, एडवाइस देना है कि लेना आपके ऊपर है ना। क्या शुरुआत करो इससे, एक टॉपिक को लेना स्टडी मटेरियल से जो सिंपल है, वहां पे पढ़ा मैंने स्टडी मटेरियल ऐसे बनाया कि जैसे माइक्रो नोट है, हाँ जैसे होता है। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए कोई एक बुक देखिए, उसमें इंफॉर्मेशन ऐड कर। So all these books you can use selectively if you rely on this. So you are going to get two booklets, एक है वो मॉडर्न हिस्ट्री का, दूसरा एशियन मिडिल, उसमें काफी इंफॉर्मेशन है, फिर भी कंपटीशन है, you have to add more things and customize that note for yourself, and you can use these sources for customization including NCR, right? That will be your final source. करंट अफेयर भी होता है हिस्ट्री का और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया उससे, वो कई सारे कल्चर को अपने भाषणों में रेफर करते हैं, कई सारे सेलिब्रेशन करते हैं। अब पार्लियामेंट का रेवोल्यूशन लेके किया, लेकिन सिंबल लेकर के वो पूरा चोल साम्राज्य का कल्चर आपके ऊपर गिरता है, तो पढ़ना पड़ेगा। तो हमने क्या किया है, सिंस लास्ट ईयर वी आर प्रिपेयरिंग बुकलेट्स, हर मंथ का हिस्ट्री से जुड़े हुए कुछ चीजें करंट में की उसका इंफॉर्मेशन, यू कैन यूज दैट स्टूडेंट्स, राइट? तो ये इनफ है, मोर देन सफिशिएंट। पता है क्या आपको, मैंने कहा ना आपको फोकस पे करो, इसको एज अ रेफरेंस यूज करो सेलेक्टिवली, राइट? सो दिस इज व्हाट आई इंटेंड टू डिस्कस एज पार्ट ऑफ माय सेशन। एज आई सेड नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा आउटलाइन के ऊपर, बट उसके बीच में आपके कई सारे इंट्रोडक्टरी लेक्चर आएंगे बाकी सब्जेक्ट्स के, राइट? सो आई कंक्लूड हियर एज फार एज माय पार्ट इज कंसर्न्ड। यू मे आस्क क्वेश्चंस इफ यू हैव। We don't have questions. We can stop this. But